इस हैबिट को, अगर ये हैबिट बन जाएगी तो फिर समटाइम्स हमें ऐसी जगह पे प्रेजेंटेशन देनी पड़ जाए जहाँ पर कुछ लोग सीनियर्स भी बैठे हों, प्रोफेशनल्स भी हों, तो वो फिर थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। यूजुअली हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी चल रही होती है और हम थोड़ा सा एक्साइटेड फील करते हैं, और जब क्लोजिंग पे आते हैं, दैट्स ऑल गाइस। जो फर्म फुटर का मतलब होता है इक्वल वेट ऑन बोथ लेग्स, और पाँव ज़मीन के साथ जुड़े हुए हों। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने सवाल पूछ लिया। नहीं भाई, उनका जिसमें शुक्रिया अदा करते हैं, हमारा टोन, हमारा लहजा भी तो वही होना चाहिए ना। Today my topic of discussion is collaboration. So now we will look upon it ke what is collaboration. First of all, collaboration is just working together for a common goal, to achieve a common goal. So actually collaboration is just teaming up together. It may be the team of one person with other one, maybe an organization is collaborating with other one, maybe a company is collaborating with other one. It's totally depend on who is collaborating actually. And next I just want to add upon the definition of collaboration, that is symbiotic relation. What is symbiotic? Symbiotic, it is actually just a biological term that is being used to describe a relationship between two organisms who are just living together and are beneficiary for each other. So actually that is collaboration is symbiotic relationship in which two partners are being benefited from each other. So there is a personal interest of each partner from the other one, and it is necessary too. Next, why it is important, why collaboration is important, there is a huge a discussion on it, that why collaboration is important. Because in this world, where world is being globalized right now, so without collaboration, without unity, without union, I think success is just not only difficult but is impossible. So first of all, for collaboration, to achieve the success more easily, we need to collaborate. Why? Because there is a diversity of ideas. If one person is working on any idea or any plan, it is just only one mind. But if there are complete team working together, there is diversity of ideas, diversity of mindset, diversity of perspectives, diversity of ways to do our work. So it's totally depend diversity. Collaboration gives us diversity of ideas, diversity of ways. Next is division of labor. When we are working together in a team, then there is a division of labor. Division of labor means each task is being distributed among everyone. If one person is doing his task, the quality, if a person doing multiple tasks, the quality of tasks will be compromised. If a person is doing one task and working only on one task, the quality is improved. So there is diversity of labor, the quality of work increased, so the success rate increases automatically. Next is एक और एक 11. Actually it is उर्दू term. हम हमेशा कहते हैं उर्दू में कि एक और एक 11 होते हैं. तो it means that if we collaborate together and work on any task, then it will be very beneficiary. Next is loss and profit are equally distributed, because when we are doing on any work, if there is loss, that is being distributed, so we can come up and rise again, because the loss is being distributed among the partners. If loss is totally only on one person, then it will be very difficult to rise up again. So that's why being on safe and collaborate. Next, there is how can we achieve collaboration. Collaboration is just achieved by, first of all, it is not only comes on the very first point. First of all, you must be confident. Confidence is not just about your appearance, your communication. Actually, confidence is in your plans, confidence in your thoughts, confidence in your mind, confidence in your idea. It's all about confidence, because first of all, your first impression is your confidence. The person you are going to collaborate, first judge your confidence.
Then after that he will listen to the next point. Then comes communication. Communication is very important to convey your message to your collaborator, the person who you want to collaborate. Then there is mutual interest. Mutual interest is very important because you have to ask them, you have to convey them that what is our mutual interest. That's all from my side. Thank you so much. थैंक यू। जी, क्या फीडबैक है आपका मुतस्सर साहब के बारे में? काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। पता क्यों थे? प्रैक्टिस यकीनन की होगी। आज एक ख़ास चीज़ इसमें इनमें मैंने देखी, बड़ी बड़ी ख़ास चीज़ आप लोगों ने ऑब्ज़र्व की हो पिछली 2 प्रेजेंटेशंस को सामने रखते हुए। बताइए। मुझे बहुत ज़्यादा ट्रबल ही रहा है। एक और इनका जो फ्लो था ना वो इंतहाई मज़ेदार था। मीन्स के बड़ा स्लोली धीरे धीरे हौले हौले, बड़ा काम चिल। और जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले शायद पूछ रहे थे, यही पूछ रहे थे कि हम कहीं आगे जाके पीछे की फ़िक्र लगी होती है तो आज ये आगे चलते चले गए। दैट इज़ समथिंग फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ज़बरदस्त था। जी, आपने कहा कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। और जी इसके अलावा अल्फाज का चुनाव सेम नहीं था, मतलब कि आहिस्ता स्लो अल्फाज का चुनाव सेम नहीं था। सेम नहीं था। सेम रिदम में नहीं बोल रहे थे। अच्छा, क्या कर रहे थे? अच्छा, आवाज़ का उतार चढ़ाव, ये आप कहना चाहते हैं। चले चले, वेरी गुड। इसको ऑडियंस बोर नहीं होती। जी जी, बेसिकली इनकी जो पिच वेरिएशन थी, जहाँ पर किसी चीज़ पे स्ट्रेस करना था वहाँ ज़रा ऊंचा गए, और अदरवाइज़ तो इस वजह से भी थोड़ी सी एंगेज रखा और अच्छा लगा। मीन्स के चले। और जी मैं नहीं बोलना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ बताएं। जी, इसके अलावा क्या है? फ्लोर मूवमेंट बहुत अच्छी की, धीरे धीरे स्लोली पता नहीं चलने दिया। और एक चीज़ और जो कि जो मैं कहता होता हूँ, चलते चलते इन्होंने भी पीठ नहीं की, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने मूव करके यहाँ आ गए। सही है ना? क्योंकि वहाँ से जब चलते हैं तो कई दफ़ा हम पीठ करके चलते हैं, नहीं इन्होंने ये भी किया। वेरी गुड, मैंने भी लिखा हुआ है। जी, इसके अलावा सब दीजिए ना कुछ। जी बेटा आप नहीं, ओवरऑल अच्छी। हम लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि अच्छी की कोई रीज़न निकालें। देयर मस्ट बी समथिंग। कंटेंट बहुत अच्छा था। चलें, गुड। और फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे थे। क्या चीज़ इनके फेशियल एक्सप्रेशन पे आपको अच्छी लगी फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, ताकि बाकी भी करें? प्रेजेंट करते हुए इनके फेस पे स्माइल थी, लाइक बोरिंग फेस नहीं। बोरिंग फेस नहीं था। ओके, चलें, गुड। यहाँ से जी, और शाबाश। इनका बताएंगे तो ख़ुद भी इम्प्रूव करेंगे ना। अरफा, ये होना चाहिए, बिकॉज वी नीड टू लुक इनटू इट, और ये हमारे लिए भी एक लर्निंग है उसमें। ठीक है, चलें। जो मैं इनकी स्ट्रेंथ्स पहले हैं, तहम्मुल मिजाजी बहुत अच्छी लगी। इनका कम्युनिकेशन फ्लो, जिसमें मैं बता रहा हूँ, बड़े धीरे धीरे आराम से चले गए। एक एक वर्ड को बड़ा अच्छा क्लियरली बताया। फ्लोर इन्होंने जो मूव किया बहुत अच्छा किया। हैंड्स का बड़ा अच्छा यूजेज था, जहाँ एक हाथ से वो यूँ कह रहे थे, एक कह रहे थे तो हाथ उंगली उठाकर एक कह रहे थे। ठीक है, तो ये भी एक मतलब कम्प्लीमेंट करना। जो आप बोल रहे हो ना, अब जैसे जो आप बोल रहे हो ना, मैंने कहा ना बोल, तो बोल से मेरा हाथ इधर आ गया, तो ये दोनों आपस में एक मैच कर गए। ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी थी। अच्छा, एक्सप्लेनेशन जो कि अपने पॉइंट्स की, एक एक दो वर्ड का बुलेट पॉइंट था। पूरी स्लाइड क्राउडेड नहीं थी, बड़ा सिंपल वो रखा हुआ था। ठीक है, इनकी ये जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो बहुत अच्छी इन्होंने कोट की। 1 1 2 11 जो इन्होंने बताया। ठीक है, 1 + 1 इज़ नॉट 2 बट रादर 1 × 1 इज़ 11। ठीक है, और एक चीज़ जो सबसे अच्छी लगी, जो ये कि आम तौर पर आप भी आएंगे तो मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे, बट कंफ्यूज नहीं होना, जो बनाइए वैसे ही कीजिएगा। इन्होंने बड़ा अच्छा डिफरेंशिएट किया इन बिटवीन कोलैबोरेशन एंड द टीम वर्क। आम तौर पर हम कोलैबोरेशन को टीम वर्क के साथ मिक्सअप कर देते हैं। ओके, इसके साथ मिक्सअप कर देते हैं। हो सकता है आपने भी किया हो, नो इशू, अब परेशान होने की बात नहीं है। आप अपने चलिए, बट लेटर ऑन हम उसको हम सब आप कर लेंगे। वो सबसे अच्छी चीज़ थी कि जो इन्होंने राइट इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड
डेफिनेशन में बता दिया कि व्हाट डू वी मीन बाय कोलैबोरेशन, वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट, वन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, वन एस्पेक्ट टू द अदर एस्पेक्ट, के दोनों किस तरीके से अल्टीमेटली। ठीक है जी। मुदस्सिर, आई एम सो हैप्पी विद यू, बिलीव इन मी। जिस तरह से हम इम्प्रूव कर रहे हैं ना, वो दिन दूर नहीं कि मैं एक दिन आपको यहाँ खड़ा देखूँ। बिलीव इन, ये सबके लिए है। हम आपको तैयार कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। और मज़ा तब आए कि जब आप आएँ एक अपना टॉपिक लेकर, पब्लिक हो और ऑडियंस देखने आए और अपना इंट्रोडक्शन कराएं कि लोग, आई एम द सर्टिफाइड राइजिंग स्टार ऑफ सीज़न 40। क्या बात है। मैंने यहीं खड़े होकर सीखा और मुझे खुशी है कि मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ मैंने सीखा, आज मैं वहाँ पर एज ए स्पीकर खड़ा हूँ। ओके, एंड यू विल इंशाल्लाह वन डे। दैट्स हाउ इज माय वे ऑफ। ठीक है, लव यू। बहुत अच्छे, शाबाश। आइए जी, तालियां। Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम। Today the topic of my presentation is collaboration, and as you guys all know in Urdu terms what actually collaboration is. So here I am to just give a little explanation over that with some real life examples as well. So let's start it. So let's start with what is actually collaboration. Collaboration doesn't mean कि आप एक organization में जाओ और आप फिर उनके साथ उनके अकॉर्डिंग काम करने लग जाओ. दिस इज़ नॉट एक्चुअली वट वी कॉल कोलेबोरेशन. कोलेबोरेशन का मतलब ये है, यू हैव एन आइडिया, यू वॉन्ट टू वर्क ओवर दैट, यू टीम अप विद दोज पीपल हु हैव द सेम गोल्स, जो उसी गोल के ऊपर आपके साथ काम करना चाहते हैं. सो दिस इज़ वट एक्चुअली वी कॉल कोलेबोरेशन. सो हम कोलेबोरेशन को ऐसे डिफाइन कर देते हैं दैट इट इज़ अ टीम वर्क, but it is a teamwork of the people who share common goals. Okay, so here I also mentioned that the shared goals are called the collaboration. Now next move, it is basically we can call diverse skills. I want to work over one thing, you want to work over the same thing, but आपका करने का तरीका और होगा, मेरा करने का तरीका और होगा. When we will participate, we will define कि यार अगर हम इस मिड वे में चले जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी एक्चुअली कॉल कोलैबोरेशन, एंड कोलैबोरेशन ब्रिंग्स सो मेनी फ्रूट्स फॉर अस. एंड कोलैबोरेशन इज़ बेसिकली म्यूचुअल ट्रस्ट. आई एम वर्किंग विद यू, so basically I am trusting over you, I am investing over you because I want to work with you, and when I want to work with you, so obviously it is called mutual trust. Now let's move why collaboration is important. So guys, as you all know that collaboration जो है वो हमारे लिए बहुत important होता है, क्योंकि collaboration जितना ज़्यादा हमारे लिए important है, उसकी सबसे basic reason ये होती है कि जब हम बहुत सारे लोग आपस में काम कर रहे होते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम जब बहुत सारे लोग काम करेंगे तो बहुत सारे लोगों के आइडियाज़ हमारे साथ मिक्सड अप होंगे. जब बहुत सारे लोगों के आइडियाज़ हमारे साथ मिक्सअप होंगे तो ऑब्वियसली इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्टिविटी फॉर ऑल ऑफ अस. जब बहुत सारे लोग काम करेंगे, बहुत सबके बहुत अलग अलग आइडियाज़ होंगे, तो ऑब्वियसली इट विल result in better outcomes. Now let's move to the next point. Next point is obviously जब बहुत सारे लोगों के आइडियाज़ हैं तो इसमें क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, इसमें आउटकम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इसको करने के रास्ते भी बहुत ज़्यादा हैं. मोस्ट प्रोबेबली मैं जिस काम को बहुत मुश्किल समझ रही हूँ लेकिन मैं करना चाहती हूँ, लेकिन आपके पास कोई ऐसा आइडिया हो सकता है जिससे मैं उसे बहुत ईजी वे में कर सकती हूँ. आप लोग मेरे साथ काम कर रहे हो तो व्हेन वी 3 or 4 पीपल आर वर्किंग टुगेदर ऑन द सेम थिंग, आई विल फील कॉन्फिडेंट, यार नहीं यार ये भी लोग भी तो मेरे साथ कर रहे हैं ना, तो मैं भी कर सकती हूँ. So this is what actually collaboration is importance. Now obviously we all guys know that collaboration is basically team bonding. हम 5-6 लोग एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो this is what we call team bonding. मैं अगर एक दिन एब्सेंट भी हूँ doesn't mean कि मेरा काम पीछे से रुक जाएगा, क्योंकि obviously when we are working as a team मेरे पीछे से कोई बंदा संभाल लेगा. मैं अपने हिस्से का काम कर गई, अगला बंदा उसे मैनेज कर लेगा. So this is actually the great importance of collaboration. Now let's move how to develop this skill. This skill is not difficult to develop, but obviously हर चीज़ को अचीव करने के लिए मुश्किल तो हमें पेश आती है, because we need confidence and we need people जो हमारे साथ हमारे माइंडसेट पे काम कर सके, and mostly we don't find people जो आपके माइंडसेट पे आपके साथ काम कर रहे होते हैं. So why, how to develop this skill? Active listening. मैं सुन रही हूँ यार, ये मेरे साथ इसी पॉइंट पे इसी तरह से काम करना चाह रहे हैं, so obviously we are sharing the same goals. ओपन माइंडसेट, वेलकम पीपल. मेरा ये पॉइंट है, आप कैसे कर सकते हो, आपका करना है, आप बता दो, लेट्स डिसाइड, कोई म्यूचुअल वे निकाल लेते हैं. सो दिस इज़, एंड नाउ द मेन थिंग, ग्रुप टास्क.
If you don't have the capacity to work in a group, you are not going to achieve it. You must be flexible. You must achieve that thing. अगर आप flexible नहीं हो सकते, आप लोगों में adjust नहीं कर सकते, you can never collaborate with the people. If you want to collaborate, you must be flexible enough कि आप लोगों की बात सुन सको, समझ सको और उसके बाद अपना point भी convey कर सको. अगर आप अपना point उन्हें convey नहीं करोगे, तो obviously it will result in a lot of mess. And if you want to take your life out of mess and work very smoothly, you need to be flexible to work in a group task. And enthusiasm, obviously. I want to do something. If I am not enthusiastic, I will never be able to do that. To do anything in your life, you must be enthusiastic. This is the key to success and key to your goal. That's all by my side. Thank you so much. Minahil, do you remember your very first day, first presentation? Yes, sir. क्या उसमें क्या एक दो चीज़ें आपने पर्टिकुलरली साथ लेकर गई जो की लर्निंग थी, जो कि आपको एक गाइडलाइन दी गई थी? To work over my slides. ज़बरदस्त. I still remember the very first presentation. आपकी स्लाइड्स बड़ी क्राउडेड थी. Do you remember? Yeah. ऐसा था ना, आपने बेहतरीन कर दिया. इसके अलावा एक चीज़ और थी, I don't exactly मुझे remember. पता है. अगर मैं कहूँ तो पीछे से नोट्स भी देख सकता हूँ मैं. लिखे हुए ना, सारे नोट्स चल रहे हैं मेरे साथ. जी. Right? Where is Minahil? Mishmam Nusrat Minahil. एनिमेशन Yes, sir. नहीं थी, अब एनिमेशन भी है. एनीहाउ, आपका फीडबैक जिससे पहले कि मैं बोलूँ, मैं जज्बाती हो रहा हूँ, थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हूँ. जी. Slides off करके सामने आकर बता. दैट इज बेसिकली दैट इज समथिंग विच इज़ बहुत कम लोग करते हैं. बिलीव इन मी, यहाँ इतनी प्रेजेंटेशंस होती हैं, इतने प्रेजेंटर आते हैं. मैं ये भी कह सकता हूँ, अंदाजे से कह सकता हूँ कि 70 और 80% को ये भी शायद ना पता हो कि इसको ऑफ कैसे करते हैं. बिकॉज मैं बड़ा रेगुलरली सीख रहा हूँ और मुझे एक बड़ा अच्छा फोरम मिल गया है, और जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं हमारी इसके ऊपर पेज के ऊपर, हमारे बड़े दोस्त आते हैं, स्पीकर, तो मैं उनको देख रहा होता हूँ. स्क्रीन ऑन है, स्लाइड ऑन है, मल्टीमीडिया ऑन है, और यहाँ पर खड़े हुए हैं और चेहरे पे हमारे अल्फाज पढ़े जा सकते हैं. वाइट शर्ट पहनी है तो उस पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है. ठीक है ना. तो ये इन्होंने बड़ी करेजियस है. और वैसे बाय द वे मैंने भी लिखा है, देखिए ना, ये लिखा है, देखिए ये स्क्रीन ऑफ करना, ये देखें आपके कितने प्लसेस लिखे हुए हैं मैंने. ठीक है. अच्छा, और जी इसके अलावा उसके अलावा कॉन्फिडेंट है, फ्लोर मूवमेंट्स है. कॉन्फिडेंस था, फ्लो मूवमेंट बहुत अच्छी थी, और हाँ शाबाश, फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे. और फेशियल एक्सप्रेशंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी और जब सबसे इम्प्रेसिव लगा, पता क्या था? द यूजेज ऑफ आई बॉल्स. ठीक है, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग आपसे कह रहा हूँ, इसको पॉजिटिव लीजिएगा. आई एम वेरी इन्फ्लुएंस्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय द फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ एक्ट्रेस माहिरा. अगर कभी भी उसकी एड देखें या उसकी कोई मूवी देखें, कोई ड्रामा देखें, तो उनके फेस के इतने अच्छे एक्सप्रेशन जो आते हैं, उसमें मेजर जो कमाल होता है ना, वो उनकी यूजेज ऑफ आई का है. वो अपनी आइज़ का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती हैं. इन्हों की भी प्रेजेंटेशन में मैंने कहीं लिखा है, पता नहीं, ये लिखा हुआ है, अभी नहीं लिखा, सच्ची पहले का लिखा हुआ है. तो ये आंखें जिस तरह से ये इनकी पिच ऊपर जाती है, तो इनकी आंखें भी ऐसे यूँ जाती हैं. फैंटास्टिक, फेबुलस. जी, और तैयब सर, और क्या अच्छा लगा? स्लाइड्स लास्ट टाइम से बहुत अच्छी थी, लास्ट 2 टाइम से काफ़ी अच्छी थी. स्लाइड्स बहुत अच्छी थी, नो डाउट. ये कह दिया गया, आपको नई चीज़ बताया ना आप, और कुछ नहीं लिखा. मैंने इतनी सारी क्यों चीज़ें लिखी? तो आपने जज कर रहे हैं, तो फिर जी. हैंड जेस्चर्स बहुत अच्छे थे. ये मैं कह, बॉडी लैंग्वेज कमाल की आज नज़र आई. हम आप मतलब कि हैंड्स मूवमेंट, अगर आप कभी वीडियो देखेंगे, आपकी अपलोड होगी, तो यू विल सी योर सेल्फ द वे वी आर इम्प्रूविंग. माशाल्लाह आपने बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, आप में माशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट आई है. एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट जी, इनके लिए एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट किस पे इनको फर्दर अभी, क्योंकि परफेक्ट कभी कोई नहीं होता. जो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती चली जाती हैं. तो हमें अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करना पड़ता है.
शायद आपसे मैंने जिक्र किया था, डू यू नो व्हाट इज़ अबाउट रेजिंग द बार? हाई जंप देखा है कभी स्पोर्ट? हाई जंप कैसे, क्या होता है उसमें? एक बार होता है, एक डंडा होता है जिसे कह ले, राइट? हाई जंपर आता है पीछे से भागकर उसको जंप करके क्रॉस करता है, फिर क्या करते हैं? फिर उसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। बाकी लोग भी जंप कर रहे होते हैं, कुछ ऊंचा कर देते हैं 1-2 इंच, फिर दोबारा से लोग करते हैं, फिर कुछ लोग नहीं कर पाते, रह जाते हैं, फिर करते करते वो जितना हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं रेजिंग द बार। इन अदर वर्ड्स, हम वी आर रेजिंग द स्टैंडर्ड्स एज वेल। वी स्टार्टेड विद बैजा बैजा, कोई गल नहीं, शाबाश शाबाश, कर लोगे, अच्छा किया, ऐसा ही था ना पहली दफ़ा? हाँ, तो दैट्स हाउ एज द टाइम पासेस वी आर इम्प्रूविंग टुवर्ड्स दैट। चले माशाल्लाह, बॉडी लैंग्वेज ओवरऑल, हैंड्स एंड आईज और फेशियल एक्सप्रेशंस, एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट बताइए जनाब। इनके लिए हमें और अच्छा बेहतरी लानी है। मिनाइल और फ्यूचर स्पीकर, देखिए कितने स्पीकर बन रहे हैं हमारे पास जी। सर जस्ट मैंने जो एक चीज़ हाँ प्लीज़ ओपन, वी आर ऑल कोलीग्स फ्रेंड्स। एक्चुअली जैसे इन्होंने मतलब बताया, बिल्कुल फ्लोर मूवमेंट भी हो गई थी। जस्ट जब वो स्लाइड पे मतलब देखते थे ना, तो कंप्लीटली टर्न ऑफ हो जाती थी, मींस को ऑडियंस को मुकम्मल तौर पे बैक दिखाना, दैट वाज समहाउ कैन बी बेटर। चलो, मुश्किल से आपका एक वर्ड मिल गया, कैन बी बेटर। जब भी बेसिकली, क्योंकि एक और चीज़ है ना, अगर हम आदी हैं ना पहले से टेक्स्ट के, या ग्रेजुअली हम उसको ठीक करते चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो टाइम लेती हैं। इफ़ वी आर यूज्ड टू ऑफ रीडिंग द स्लाइड्स, सो व्हाट विल हैपन कि हम फिर वो आदत थोड़ा टाइम लेती है। अभी भी हालांकि इनके बुलेट से होता क्या है कि प्रैक्टिस जब करते हैं, एक बुलेट देखा, दैट्स ऑल, ज़्यादा देर यहाँ नहीं टिकना। और हमारी स्टैंडिंग पोजीशन तो वैसे भी डायगोनल होती है, पीठ नहीं ना, देखिए ज़्यादा ना करें, पीठ नहीं हुई हमारी तरफ। ये ज़रूर हुआ है कि थोड़ा इनका फोकस जो है वो उस साइड पे ज़्यादा था, वो उधर कर रहे थे। चलें, इसके अलावा प्लीज़ एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, इस तरफ से ऐसे ही इम्प्रूव करना है ना सब ने जी। आपकी तरफ से जी, क्यों? टुमारो यू विल बी द कोच, आप कोचिंग भी सीख रहे हैं, ओके? तो आप अपने कोचीज़ को क्या फीडबैक देंगे, कैसे उनको कोच करेंगे, सीखिए ना, ठीक है? मुझे सिर्फ बाकी चीज़ें छोड़, एक तो आपने एक चीज़ मुझे और कहनी है, मैं कहता हूँ इम्प्रूवमेंट के लिए। ये हम वर्ड यूज़ करते हैं, हमारे लिए इट्स ओके, गाइज as far as we are concerned, we are all young people including me, right? Guys is okay for us, but इस हैबिट को, अगर ये हैबिट बन जाएगी, तो फिर समटाइम्स हमें ऐसी जगह पे प्रेजेंटेशन देनी पड़ जाए जहाँ पर कुछ लोग सीनियर्स भी बैठे हों, प्रोफेशनल्स भी हों, तो वो फिर थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। हम असर के लिए, हम उम्र के लिए, क्लास फेलोज़ के लिए, अपने जैसों के लिए, तो गाइस कहना इज़ ओके। आर यू विद मी? यस सर। तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी आपको बता दूं, क्योंकि जितना आपने पहले चीज़ों पे इम्प्रूव किया, आई एम श्योर कि इस पे भी आप मेहनत करोगे। आई एम सो हैप्पी विद यू। आशीर्वाद लेना है, खुश रहो। ओके, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम। I am Mama Fatima from Government College University, and today my topic is collaboration. So collaboration is just sound like an other buzzword, right? But it's actually one of the most powerful human tools we have. So collaboration more than just teamwork. वेरी गुड। First slide. Basically, collaboration is, in its core, it means that working together towards a common shared goal. But it's not about, it's not just about splitting work. It's about working together and, I'm sorry, एक second. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। So, collaboration, different people with different ideas, different perspective, different experiences, they work together and they exchange ideas, they exchange skills, and then they create masterpieces. Basically, collaboration is. It builds trust and respect.
व्हेन वी कोलैबोरेट वी वर्क टुगेदर। जब हम काम कर रहे होते हैं इकट्ठा तो हमारे साथ सीनियर्स भी होते हैं, जूनियर्स भी होते हैं, तो हम सीनियर्स की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे, और जूनियर्स के साथ हम अच्छे से काइंडनेस से बात कर रहे होते हैं। तो इस तरह कोलैबोरेशन ट्रस्ट बिल्ड करती है और रिस्पेक्ट बिल्ड करती है अमंग द पीयर्स। सो कोलैबोरेशन में हर कोई कंट्रीब्यूट करता है और हर कोई ग्रो करता है। पीपल वर्क टुगेदर, दे ग्रो टुगेदर in a room, in a atmosphere, they work together there. So now we know what is collaboration. Let's talk about why it makes everything better. Why collaboration is needed basically. So collaboration speak innovation through diverse thinking. What this means is people are with different skill set, different ideas, different perspectives, they work together and then it brings innovation to the room. It also strengthens our communication skills. We are communicating with one another and you know how collaboration works. I'm sorry guys, मैंने प्रिपेयर तो किया था लेकिन अभी मुझे एकदम पता नहीं चला जब मेरी बारी आई है, तो इसलिए ना मैं थोड़ा सा नो इशू, कोई कुछ नहीं होने वाला। शाबाश। जब हम कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, हम अपने आइडियाज़ अपनी टीम में डिस्कस कर रहे होते हैं, हमारे जो भी आइडियाज़ होते हैं, हम जो भी सोच रहे होते हैं, तो इससे होता ये है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। कैसे? क्योंकि हमारा एक आइडिया है, वो हमने अपने पास रखा हुआ है, लेकिन जब हम उसे बयान कर रहे हैं, एक रूम है फुल ऑफ पीपल, हम उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। और हमारे लास्ट प्रेजेंटेशन थी कम्युनिकेशन की, तो कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, ये सब हैंड बाय हैंड चलते हैं, इकट्ठे चलते हैं बेसिकली। नेक्स्ट इज़ ये हमारी प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन बढ़ाता है। जब एक रूम में हम बात कर रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे हैं, पीपल उस पर आउटपुट, मतलब हम एक इनपुट दे रहे हैं, हमें आउटपुट मिलती है, हमें इम्पोर्टेंस मिलती है, हमें लगता है कि हमें कोई सुन रहा है, देख रहा है, तो इस तरह हमें मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट काम करने के लिए। और उसके अलावा इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। वही हमें, जब हम एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं या हम एक ऑफिस या किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये चीज़ हमसे बिलोंग करती है जब हम उसमें अपना भी हिस्सा डालते हैं। तो वरना अगर we are just silent and we are listening to other people, so it's not a sense of belonging, it's just like we are sitting there without any in outputs or outcomes. So next is how to build it, make it work, not war. This is the basically main thing. ये मेरा पॉइंट कम्युनिकेशन की स्लाइड में भी था कि listen to understand, not to reply. Basically, good communicators and good collaborators, they just not listen to win an argument. They just don't listen to reply. They listen to understand and share credit on responsibility. When things goes well, celebrate with the whole team. But when things goes wrong, अपनी पार्ट का जो आपने गलत किया है, जो भी गलत नहीं होता, बेसिकली जो गलती हुई है बंदे से, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इसी तरह ट्रस्ट बिल्ड होता है और इसी तरह इंसान ग्रो करता है। रिस्पेक्ट डिफरेंसेस, दे आर सुपर पावर्स। पीपल विद डिफरेंट आइडियाज, एक्सपीरियंसेस एंड इवन स्किल सेट और डिफरेंट वर्किंग स्टाइल्स, इट इज़ नॉट प्रॉब्लम, दे आर बेसिकली स्ट्रेंथ्स। Like when we collaborate, we work together, and this is the main strength of collaboration. Because हम सिर्फ अकेले नहीं काम कर रहे थे। जब हम अकेले काम करते हैं तो सिर्फ एक माइंड काम कर रहा होता है, लेकिन जब पीपल टुगेदर काम करते हैं एज वन, तो फिर वो मास्टरपीस क्रिएट करते हैं। क्लियर गोल्स प्लस क्लियर रोल्स, ये मेन पॉइंट था बेसिकली कि एक कोलैबोरेशन में क्लियर रोल्स होने चाहिए सबके, और गोल एक ही होता है बेसिकली, सबका कॉमन गोल होता है जब पीपल कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। तो क्लियर रोल्स होने चाहिए, इस तरह फिर कन्फ्यूजन नहीं होती टीम में अगर क्लियर रोल्स होंगे तो। सो लेट्स रैप इट ऑल कि collaboration is the art of coming together, and
coming together as one. So basically, when we work together, we can go far. But working alone, we can go fast. Thank you. थैंक यू। जी सर इंडस्ट्रीज का बहुत अच्छा मूव किया और जो आपने बताया था कि इस तरह करके वो काफ़ी ऐसे ही था। जब present करी थी तब इन्होंने इस तरह करके फिर बाकी भी सही है, हैंड्स ठीक है। और जी पोलाइट सी थी, धीरे धीरे थी, कंफर्टेबल थी, चले। और स्ट्रेंथ्स सर वो जो फर्स्ट टाइम वाला एक्सक्यूज था ना, वो थोड़ा बेटर। सॉरी, सर जो फर्स्ट टाइम इन्होंने थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे ना, शुरू में जो हेजिटेशन हुई फिर एक्सक्यूज किया था इन्होंने, सॉरी वाला। अच्छा, तो एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए। चले ठीक है। कॉन्फिडेंट थी तब घबराई रुकी एक्सक्यूज भी दिया लेकिन फिर कंटिन्यू वहीं से किया। So this was like- गिव अप नहीं किया, सबसे बड़ी बात है गिव अप नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात होती है, वरना यूजुअली जब राइट इन द बिगनिंग हम स्टक हो जाते हैं ना किसी चीज़ पे, और मुझे अभी इनको मैं बताऊंगा कि ये क्यों स्टक होती हैं, राइट, उसका कोई टिप भी हम बात करेंगे। तो फिर आमतौर पर ऐसा था कि सॉरी, फिर या फिर एक्सक्यूज़ मी, दोबारा से रीस्टार्ट लेते हैं। ठीक है, जिस तरह होता है ना, चलते चलते गाड़ी अगर रुक जाती है तो फिर उसको एक दफ़ा फिर उसको पुश करना पड़ता है, धक्का लगाना पड़ता है। ओके जी, तो स्लाइड्स आपस में बहुत कनेक्टेड थी। कनेक्टेड थी, क्या क्या मतलब इसका? मतलब से जो इन्फॉर्मेशन थी ना इनके, हमें किस तरह इसको अचीव करना है, हाँ। क्या हम बेटर कर सकते हैं, वो सारा कुछ इनके मतलब जो कंटेंट का फ्लो था वो एक सीक्वेंस में था, तो इस तरह से कनेक्टेड था और एक स्मूथली पॉइंट बाय पॉइंट आगे चलती जा रही थी। वेरी गुड पॉइंट। और आपने कुछ देखा जी? आप खामोश हैं, कोई अच्छी चीज़ बता दें, कोई नज़र आई हो आपको? चले कोई बात नहीं, एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट जी। सर फ्लोर मूवमेंट जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा नेक्स्ट टाइम जो है ना बिल्कुल एक दफ़ा से ज़्यादा करनी चाहिए। चले जी, ये भी है कि थोड़ा सा आप ज़रा उधर हो जाएं थोड़ा सा। देखिए, ये एक मैंने पहले भी जैसे बताया था कि फ्लोर मूवमेंट क्यों करते हैं, इसकी दो रीज़न्स हैं। अगर ये समझ जाए ना हम, तो हम करेंगे। पहली रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप तो भी 8-10 लोग हैं, ज़्यादा लोग अगर हों और ऐसा रूम फैला हो, तो इस तरफ के लोग मुझे ऐसे देख रहे होंगे और इन लोगों का इधर का मुँह, यूँ चेहरा इधर होगा, तो थक जाएंगे ज़्यादा देर अगर मैं, क्योंकि सपोज़ अगर मैं पोडियम पे खड़ा हूँ तो यहाँ पर लोग मुझे देख देख कर थक जाते हैं, क्योंकि आइज़ जो है ना वो फोकस्ड और कंसंट्रेट करती रहती हैं। और अगर मेरी 1 या 1.5 घंटे की या 2 घंटे की मेरी टॉक है तो 2 घंटे तक बड़ा मुश्किल हो जाता है ऑडियंस को कि वो उसके टिकटिकी बांध के देखते रहें एक ही जगह पर। तो क्योंकि हमारे जो है ना नेचुरली हमें आई बॉल्स जो है वो मूव करना होता है, झपकना भी होता है, तो इससे ये फ़ायदा होता है। नंबर 1, अब मैं यहाँ पे हूँ ना, तो आपका इधर है, आपका इधर हो गया, बट आपको मैं एंगेज करते हुए, ओके, आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए आपसे मैं बातें कर रहा हूँ, फेस टू फेस देख रहा हूँ, देखिए मेरे मुड़ने का स्टाइल, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। अब क्या होगा, आप जो उधर देख रहे थे वो यहाँ हो जाएगी, आपकी गर्दन सीधी, और आप इधर हो जाएंगे। एक तो ये फ़ायदा है फ्रॉम द ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू। द सेकेंड थिंग इज़ कि व्हेन वी मूव, जो अब इस पे व्हेन वी मूव पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, आप एक वर्ड कहलाते हैं, काइनेटिक्स का वर्ड एक यूज़ होता है। काइनेटिक्स क्या होता है? काइनेसिस से निकला है। काइनेसिस का क्या मतलब होता है? मूवमेंट। तो जब हम मूव करते हैं ना, मूव करते हैं तो हमारे अपने अंदर एक थोड़ी सी चुस्ती सी आ जाती है, थोड़ी एनर्जी आ जाती है, तो जो थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है, घबराहट होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। सो दैट्स वाई प्रेजेंटर क्या करते हैं कि बातचीत करते हुए, आपको एंगेज करते हुए किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं आपको। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, मैं फिर दोबारा कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि ये चीज़ एक्चुअली मैं मूव कर रहा हूँ तो मूव करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसलिए ज़रूरी है कि इसको नहीं, अब मैं ऊपर देख रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ। नो, मेरा आई कांटेक्ट मेंटेन रहना, आपके साथ आपको एंगेज रखना, और उसके बाद में पता ही ना चले, धीरे धीरे हौले हौले में मूव करता हुआ यहाँ पे आ जाऊँ और आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाओ, गर्दन भी थोड़ी सीधी हो जाए, और आई बॉल्स जो ऐसे देख रही थी वो अब ऐसे देख रही हूँ। ओके, तो और दूसरी बात जो मैंने बताई, एनर्जी आती है मूव करने से। तो सही है उमामा ही है ना? यस, उमामा जी। एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट जी, शाबाश।
जी सर अगर ये ऑन कैमरा घर में 20 टाइम प्रैक्टिस करें 20 टाइम, ओके, तो इससे इम्प्रूवमेंट 30 टाइम क्यों नहीं? मतलब कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। अच्छा 20 टाइम करें। ये आपको किसने बताया कि 20 टाइम? नहीं, वैसे अपनी लर्निंग के लिए पूछ रहा हूँ। सर मैंने जो जब क्लास में प्रेजेंटेशन होती थी जी, तो मैं ऑन कैमरा तो काश हम भी आपको देख सकते हैं ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। चले इंशाल्लाह। चलिए जी, खैर आपकी बात बचाए कि अगर हम आईने के सामने और रिकॉर्डिंग, जब आईने के सामने खड़े हों तो मोबाइल पे रिकॉर्ड भी कर रहे हो, कमरा बंद कर दे, कुंडी ला लो अंदर, ठीक है, और घर वालों को बता दे जी कि बस आई एम बिजी, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चले, और इसके अलावा एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट प्लीज़। कोई नहीं, आप नहीं चाहते कि मामा और अच्छी होके आए और बेहतर हो जाए नेक्स्ट टाइम के लिए? व्हाई डोंट यू सजेस्ट हर? ये आप नोट किया करें प्लीज़। एनी हाउ, एक तो ये बता दिया इन्होंने कि शुरू में जो, मैं वंस अगेन मैं आपसे ये रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट 1-2 मिनट हमारी टॉक के प्रेजेंटेशन के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑडियंस या वो गेस कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर ये 1 घंटे की प्रेजेंटेशन है तो हमारे साथ क्या होने वाला है, राइट? फर्स्ट 2-3 मिनट्स, कुछ तो कहते हैं 5 सेकंड्स इनफ। तो जब भी हम प्रैक्टिस करें और आए यहाँ पर, तो प्लीज़ अपनी ओपनिंग की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। मेरी हमारी एक वीडियो लगी है, बड़ी वायरल हुई माशाल्लाह, कि 2 दिन में उसके मैंने 81,000 व्यूज़ आए विद इन 2 डेज़। आप लोगों के 81,000। सादिया देखा आपने? 2 डेज़ में 81,000 प्रेजेंटेशंस आपकी थी, लोगों ने इतना लाइक किया, और 110 लोगों ने तो उसको शेयर किया। लास्ट की जो थी, ठीक है ना, लास्ट सीज़न की थी, आपकी नहीं थी, लिपट है तो हमारे कॉलेज के साथी। तो उस पे भी मैंने यही कहा था कि हमारी ओपनिंग जितनी पावरफुल होगी उतना हम फ्लो अच्छा बनेगा। एट द सेम टाइम ओपनिंग के साथ हमारी क्लोजिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यूजुअली हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी चल रही होती है और हम थोड़ा सा एक्साइटेड फील करते हैं, और जब क्लोजिंग पे आते हैं, दैट्स ऑल गाइस, दिस इज़ हाउ इज माई प्रेजेंटेशन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नहीं भाई, उसको उतने ही पावरफुल तरीके से उसकी एंडिंग कीजिए, क्लोजिंग कीजिए, कंक्लूड कीजिए, सो दैट लोग जब निकले तो कुछ टेक अवे लेकर जाएं। वो टेक अवे बताना ज़रूरी होता है। सच as you already know, our today's topic was collaboration. Okay, we discussed about collaboration, what is collaboration, how it is important for us, and how to develop it. 2-3 points as a takeaway I'll re-emphasize while concluding my presentation. Number 1, we need to differentiate between the teamwork and the collaboration. Number 2, effective communication and the building confidence among the team members and the collaborative people has to be very important. And lastly but not the least, number 3 है. Is that okay? Thank you very much from my side. ये पावरफुल। अब हम आगे बढ़ रहे हैं ना, जो ये होगा, ठीक है जी। बेटा प्रैक्टिस बहुत करनी है आपने। और एक चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि ये उर्दू इंग्लिश हमारी फंस रहे हैं हम लास्ट टाइम से भी। फॉरगेट अबाउट इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश आ जाएगी, प्रेजेंटेशन कीजिए, उर्दू में कीजिए, उसमें इंग्लिश का मिक्स कर दीजिए। अभी हम इंग्लिश में करते हैं, उर्दू का मिक्सअप करने पड़ता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, राइट? अच्छे भले चलते चलते, बट यू कैन डू इट माशाल्लाह। उर्दू में बनाइए, उर्दू में प्रैक्टिस कीजिए, और बीच में इंग्लिश का तड़का लगाते जाइए, राइट? और देखिएगा वन डे कि यू विल बी मोर एंड मोर गोइंग टूवर्ड्स द इंग्लिश, बट उस वक्त तक हमारा फ्लो बन चुका होगा। इज दैट ओके? ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उर्दू में करेंगे, उर्दू में करेंगे, अच्छा करेंगे, ज़बरदस्त करेंगे। ओके, यू कैन डू दिस मच, आई नो यू कैन डू, बट ये थोड़ा सा हम कंफ्यूज इस पे चले गए, राइट? पक्का ना? श्योर? चले बेटा, खुश रहो। ओके जी, नेक्स्ट। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। My name is Tayyib Ishfaq. I am from University of Education. आज जिस स्किल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है। ये हमारे जितने भी रिलेशंस हैं डेली लाइफ, कोई हमारी टीम कोलैबोरेशन है, कह लीजिए कि टीम इंगेजमेंट है, या जितने भी बिजनेस हैं उसके सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है, और ये स्किल है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो कोलैबोरेशन का मतलब ये नहीं है कि साथ मिलकर काम करना। इसका मतलब ये है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे की जो वीकनेसेस हैं उनको स्ट्रेंथन करना।
ठीक है, इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि 2 आर्किटेक्ट हैं हमारे पास, ठीक है, उनको एक काम दिया गया ब्रिज बनाने का। एक की स्ट्रेंथ ये है कि वो अच्छा डिज़ाइन बना सकता है, लेकिन दूसरे की स्ट्रेंथ ये है कि वो उस स्ट्रक्चर को जो ब्रिज का डिज़ाइन बनाना है उसको सेफ्टी और सिक्योर कर सकता है। लेकिन अगर वो अलग-अलग बनाने जाएंगे, जो डिज़ाइन अच्छा बना सकता है वो तो एक ब्यूटीफुल लुकिंग या जिस तरह के आजकल आउट ऑफ सिटीज़ में होते हैं हैंगिंग ब्रिज होते हैं, उस तरह का डिज़ाइन तो बना देगा, लेकिन वो ब्रिज इतना पावरफुल नहीं होगा, वो कुछ अरसे में कुछ टाइम में टूट जाएगा। इसी तरह अगर जो सेफ्टी एक्सपर्ट है वो ब्रिज बनाएगा तो वो ब्रिज जो बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग तो होगा, लेकिन वो गुड लुकिंग नहीं होगा, वो ब्रिज को देखने का भी दिल नहीं करेगा, तो लोग वहाँ आएंगे कैसे। लेकिन जब वही दोनों एक टेबल पे बैठ के आपस में डिस्कस करेंगे, अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे, तो फिर जो ब्रिज बनेगा वो ब्रिज गुड लुकिंग भी होगा और स्ट्रॉन्ग भी होगा। ठीक है, ये बेसिकली कोलैबोरेशन के बारे में एक थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बताने की कोशिश की है। एक कोट है हमारे पास कि अगर आप तेज़ जाना चाहते हो तो अकेले चलो, आप अकेले जाओगे तो ज़्यादा तेज़ जा सकते हो, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हो तो फिर अपनी टीम के साथ चलो, अपने साथ जो लोग हैं उनको साथ लेके चलो, क्योंकि जो सक्सेस है उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम जो है अपने साथ वाले उनको लेके चलें और सक्सेस को स्टेन भी कर सकें। अगर हम अकेले जाएंगे तो हम सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है क्या वो एक पर्सन चलाता है, बेशक वो स्टार्टअप सिंगल पर्सन से हो, लेकिन वो जो है जब वो बड़े बिजनेस में कन्वर्ट हो जाती है तो उन्हें टीम्स हायर करनी पड़ती हैं, कोलैबोरेशन की ज़रूरत पड़ती है उन्हें। ठीक है, इसी तरह हमारा अगला पॉइंट है वाई कोलैबोरेशन मैटर्स इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। कोलैबोरेशन हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इम्प्रूव्स क्रिएटिविटी थ्रू आइडिया। जब आइडियाज़ मिलते हैं हमारे जो डिफरेंट पर्सन है, डिफरेंट उनकी इंटेलिजेंस है, वो जब आइडियाज़ मिलते हैं तो डिफरेंट आइडियाज़ जो हमारा एक मेन आइडिया होता है वो इवॉल्व होता है। कुछ लोग ऐसे, जिस तरह हमने अभी पिछले सेशंस में बात की थी कि जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे माइंड में, आइडियाज़ होती हैं, उन्हें डिस्कस करना चाहिए। हमें डिस्कस क्यों करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के इंटेलिजेंस का लेवल डिफरेंट होता है। तो जब हम एक आइडिया को डिस्कस करेंगे उस आइडियाज़ पे मज़ीद आइडियाज़ आएंगे हमें, वो आइडिया बेटर होता जाएगा जो जिसकी वजह से हमारी क्रिएटिविटी, नॉलेज, ये सारी चीज़ें इन्हेंस होंगी। कोलैबोरेशन बैलेंसेस स्ट्रेंथ एंड कवर्स वीकनेसेस। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया है, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें 3 स्किल्स की ज़रूरत है, डेवलपमेंट, कोडिंग और डिज़ाइनिंग। एक पर्सन है, उसकी स्ट्रेंथ है डेवलपमेंट, वो कोडिंग में वीक है और डिज़ाइनिंग में वीक है। अगर वो अपने साथ एक ऐसे पर्सन को हायर कर लेता है जो कोडिंग के अंदर स्ट्रॉन्ग है, तो जो ओवरऑल टीम की स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, डेवलपमेंट और कोडिंग। लेकिन अभी वीकनेसेस जो है, दोनों की वीकनेस है वो है डिज़ाइनिंग। एक और पर्सन को हायर कर लें जिसकी स्ट्रेंथ है डिज़ाइनिंग, तो ये पूरी ओवरऑल कलेक्टिव टीम की जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो तीनों बन गई। इसी तरह जो उनकी वीकनेसेस थी वो एक दूसरे कवर कर रहे हैं। एक अगर किसी चीज़ में वीक है तो दूसरी चीज़ उसके अंदर स्ट्रेंथन कर रही है। तीसरा पॉइंट है क्रिएट आउटकम्स दैट नो वन कुड अचीव अलोन। इसको बेसिकली हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं, डेली लाइफ एग्जांपल से। एक धागा आपने देखा हुआ है, धागा जो है वो कपड़ा बना सकता है, खाली सिंगल धागे से कपड़ा नहीं बन सकता। लेकिन जब उसे हम बुनना शुरू करते हैं, धागे के साथ धागा मिलता है, तो वो जो बनता है, दिस इज़ कॉल्ड कोलैबोरेशन। ठीक है, इसी तरह अगर हमने एग्जांपल सुनी है, यूनियन इन स्ट्रेंथ में एक वुड कटर था और साथ में था उसके बच्चे। ठीक है, उसने अपने बच्चों को कहा लकड़ियाँ जमा करने को, उन्होंने लकड़ियाँ जमा की। जब उन्होंने अकेली लकड़ी तोड़ी तो वो सब ने तोड़ ली, लेकिन जब उन्होंने उसको बंडल में बना दिया, क्या जो अकेली लकड़ी थी उसकी अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हुई? नहीं ना। लेकिन जब वो बंडल के अंदर आई तो उस ओवरऑल बंडल की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हुई। ये है कोलैबोरेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कोलैबोरेशन क्यों ज़रूरी है, कोलैबोरेशन डेवलप कैसे करें। ठीक है, पहला पॉइंट है, सबसे पहले जब भी हम किसी टीम में कहीं भी काम कर रहे होते हैं तो हमें कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं या कुछ हमें काम ऐसे करने पड़ते हैं जो हमारा करने का दिल नहीं करता, हमारी ईगो हर्ट होती है। अपनी ईगो को छोड़ दो। ठीक है, अपनी ईगो से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे, अपने कंफर्ट जोन को प्रोटेक्ट करने की बजाय अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम जो है इस तरह की कोई भी जो कम्युनिकेशन है या कुछ भी हम नया सीखना जा रहे हैं वो हम नहीं सीख सकते। सबसे पहले हमें अपनी ईगो ख़त्म करनी है। दूसरे नंबर, डोंट ट्राई टू शाइन अलोन। हर चीज़ का क्रेडिट खुद लेना। काम बेशक आपने किया है, लेकिन हर चीज़ का क्रेडिट खुद लेना भी अच्छी बात नहीं है। आपने टीम में काम किया, किसी ना किसी का कोई ना कोई जो है वो उसमें रोल होगा।
तो उस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। जो है मी से आपने चेंज करना है वी, अस, आवर, ये चीज़ें लेनी है कि हमने जो अचीवमेंट ली है हमने पूरी टीम ने मिलके ली है, ये मैं अकेला नहीं था कर सकता। क्रेडिट देना दूसरों को कि अगर किसी ने इतना सा भी काम किया है तो उसको भी क्रेडिट देना। आस्क बेटर क्वेश्चंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये न्यू आइडियाज़ को जन्म देते हैं। हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, उसके अंदर बेटर क्वेश्चंस करते हैं। हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि डिफरेंट सिनेरियोज में हम तैयार हों, हमारा जो प्लान है वो बिल्कुल रेडी हो, या हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिफरेंट सिनेरियोज में बेटर परफॉर्म कर सके। हमारी टीम भी कह सकते हैं बेटर परफॉर्म कर सके। डिसएग्री विद रिस्पेक्ट, हम एक टीम के अंदर है, डिस्कशन हो रही है, तो कई दफ़ा इस तरह होता है कि हम किसी के पॉइंट से सहमत नहीं हैं, हमें नहीं अच्छा लगता उसका पॉइंट, तो हम उसे बजाय डायरेक्ट कहने कि आपका पॉइंट सही नहीं है या आप इस तरह सही नहीं कर रहे, हम उसे कुछ इस तरह की वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं कि वो चीज़ उसको भी ज़्यादा हर्ट ना हो। हम जो यहाँ ये सीख रहे हैं कि हमें पॉजिटिव वे में उसको बताना है कि हम इसको इस तरह नहीं इस तरह लेके चल सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आस्क हाउ कैन आई सपोर्ट। हमें काम बेसिकली हम टीम में काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, काम तो हमें करना पड़ेगा। बजाय इसके कि हम ये कहें कि मुझे क्या काम देते हो या मैंने ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, तो हम ये कह सकते हैं कि मैं आपको सपोर्ट कैसे कर सकता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो लास्ट पे मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि एक जब हम टीम में काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं किसी के साथ, तो उसके अंदर ये बिल्कुल भी नहीं आपने कहना कि मैं इनमें सबसे स्मार्टेस्ट हूँ, मैं अपना काम जल्दी करूँ, मैं अपना काम तेज़ करूँ। आपने सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है कि आप दूसरों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, आप दूसरों की स्ट्रेंथ कैसे बन सकें, उन्हें सपोर्ट करना है हमने बेसिकली। थैंक यू सो मच। जी, सर इन्होंने बताओ सर। स्टार्ट का जो सिग्नेचर उसी के साथ स्टार्ट किया। अच्छा, अभी भी आई कांटेक्ट मेंटेन रखने की कोशिश की है। ओके, सही। सर वो ऑडियंस से क्वेश्चन किया था इन्होंने, हाँ, वो सर काफी अच्छा लगा। क्या क्वेश्चन किया था? उन्होंने पूछा कि आप बताएं कि वो पूछा था, हाँ, आपने एक एग्जांपल दी थी। अच्छा, एग्जांपल दे दी, ठीक है, वो अच्छा लगा। ग्रेट। एग्जांपल्स बहुत अच्छी दी थी उससे। रियल लाइफ एग्जांपल्स बेसिकली जब भी अगर हम इस अपनी प्रेजेंटेशन में एक या दो एक्सप्लेनेशन के लिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कोई रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं तो उसको बहुत ही चार चांद लग जाते हैं। दैट्स वेरी गुड, माशाल्लाह जी। और लोग बहुत काम था, बहुत आज रेंज में रहते हैं, उन्होंने हर चीज़ एक्सप्लेन किया। नॉर्मल बड़ा काम, क्वाइट चिल, बड़ा अच्छा तरीके से चले, बट उसमें एक चीज़ और भी मैं ऐड करूँगा, यहाँ तक सही है, बट अभी इसमें भी एक चीज़ की और गुंजाइश है, अभी बेहतर कर सकते हैं जी। और स्ट्रेंथ इनकी ये काम पे थे इनके हाथ, बट इन्होंने वो जाहिर नहीं होने दिया कि कहीं से नर्वस हैं, कुछ भी बहुत कॉन्फिडेंटली और स्मूथली अपनी सारी पैसे है भाई, ऐसा था थोड़ा शुरू में। बहुत चले जी, थोड़ा बहुत था, लेकिन पता नहीं चला, मुझे नहीं पता चला, शायद मैं दूर था। चलो, एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट प्लीज़। जान बच्ची सो लाखों पाए जी। और सर वो थोड़ा सा ना अपना वेट शिफ्ट कर रहे थे कभी। ये उस्ताद, ये देखें क्या लिखा हुआ है उर्दू में, कोई फेस्टिवल, इस पे आपने काबू पाना है, राइट। हमें नहीं पता चलता, एक्चुअली ये हमारी हैबिट्स हैं जो शुरू से हैं, चली आ रही हैं, हमें किसी ने बताया नहीं या कोई अवेयर नहीं था खुद से, किसी को नहीं पता होगा। यहाँ हम ज़रा थोड़ा सा क्रिटिकली देख रहे होते हैं, राइट, इम्प्रूवमेंट के लिए और बेहतरी के लिए, आपको ब्रांड बनाने के लिए, राइजिंग स्टार बनाने के लिए, राइट। तो हम थोड़ा सा इन चीज़ों पे तवज्जो करते हैं। अदरवाइज़ अगर शुरू में हमें बता दे कोई और उसके ऊपर हम काम करें तो ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। मैं हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ, और तैयब साहब आपसे अभी पल्ले बांध दें, एक दो वर्ड है, फर्म फुटेड। क्या फार्म फुटेड, क्या मतलब है इसका? मतलब हाँ, समझ आ गई? नहीं जी, नहीं समझाओ ना सानू। सर लाइक तहम्मुल के साथ खड़े। नहीं, फर्म फुटेड, फर्म अपने पाँव को मजबूती से ज़मीन के ऊपर गाड़े रखना। बिकॉज जब हम यूँ करते हैं, देखें मैं कर रहा हूँ अभी, मैं यूँ कर रहा हूँ, जब मैं यूँ करूँगा ना तो फिर जब मैं ऐसे आऊँगा तो ऐसे करता रहूँगा तो ऐसा लग मैं झूल रहा हूँ। अब कभी देखिएगा, अपनी वीडियो बनाकर देखिएगा अपने तौर पर, राइट। तो वो फिर किसी जगह वो बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है, बिकॉज हमने बार बार कह रहा हूँ, हमने आगे से आगे जाना है ना, यही
डे टू डे बेसिस पे बिट्स एंड टिप्स में थोड़ा थोड़ा हमने लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है, आगे जाना है। ये शुरू से कह रहा हूँ। अभी भी अगर आप गौर करें तो इस पाँव पे आपका वजन ज़्यादा है। जो फर्म फुट का मतलब होता है इक्वल वेट ऑन बोथ लेग्स, और पाँव ज़मीन के साथ जुड़े हुए हों, राइट, सीधा। जब जो ही ज़रा देखें, मैंने ये पता चल जाता है, जो ही मैंने इधर से हटाया गड़बड़ हो गई। तो आपके लिए बाकी माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छी कर ली हैं। आई एम सो हैप्पी, राइट। बट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें और इम्प्रूव करने की गुंजाइश है, और ये शुरू से चली आ रही है और आपको भी पता है इसका। इसके अलावा जी इनके लिए एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट प्लीज़। आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं जी, चलो। हाँ सर ये शुरू में सर इंट्रोडक्शन का इंग्लिश में होता है, हाँ। उसके बाद सर अगर ये स्लाइड्स के अंदर जितनी इंग्लिश लिखी होती है ना, अगर वो भी अगर ये इंग्लिश में बोल रहे हैं तो सर वो ये लास्ट टाइम भी आपकी बात एग्री, मैं लास्ट टाइम भी ये कह रहा था कि आप ग्रेजुअली, आप उर्दू में बहुत अच्छे, उमामा ये आपके लिए एग्जांपल है कि ये उर्दू में करते हैं लेकिन कॉन्फिडेंटली अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। इनके लिए यही लास्ट टाइम भी ये था कि आहिस्ता आहिस्ता आप इंग्लिश की तरफ आएँ, क्योंकि इंग्लिश ऐसी एक लैंग्वेज है कि हमें आगे बढ़ने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपके सब्जेक्ट क्या हैं, पढ़ते क्या हैं आप? हाँ, आईटी में तो बहुत ज़रूरी है ना। आप आईटी का तो टोटल आपका है ही इंग्लिश में। किसी को कम्युनिकेट करना है, आपने इंटरनेशनल लेवल पे कोई बात करनी है किसी से या जो भी है, तो वो ज़रूरी है। इंग्लिश सीखिए साथ साथ, बट द लैंग्वेज शुड नॉट बी द बैरियर कि आप उर्दू में बहुत अच्छे की, तो वो आपका पॉइंट वैलिड है। इसके अलावा और कोई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट? एक चीज़ मेरी तरफ से, आप ज़रा मुस्कराएं, थोड़ा सा हल्का हाथा हुए, ये ज़रा से हल्के से, बस ये जो मेरे ज़रा ज़्यादा खुल जाते हैं, इतने से दांत नज़र आए, देखिए ऐसे, ये ज़रूर होनी चाहिए। आप जिस तरह से फ़्लो में जाते हो, और आज इन्होंने बताया जी आपकी एग्जांपल बहुत अच्छी थी, हेड्स मूवमेंट बहुत अच्छी थी, आपके कंटेंट्स बहुत अच्छे थे, आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी थी, ज़बरदस्त माशाल्लाह। और जिस तरह से आपने एक एक चीज़ को समझाने के लिए आपने रियल लाइफ एग्जांपल्स कोट की, फैंटास्टिक, बड़ी खूबसूरत। एक बस थोड़ी सी अब दो चीज़ें आपसे और चाहिए, प्लीज़ 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 तैयब साहब, दो चीज़ें चाहिए। एक तो ये कि फॉर्म फुटेड होना है, सीधे खड़े होना है, दोनों पाँव पे इक्वल वेट आना चाहिए, राइट जी। इक्वल वेट आएगा तो अब कभी नहीं झूमेंगे। मैं देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ झूमने की, नहीं झूम पा रहा, लेकिन जब मैं यूँ करूँगा ना एक हवा पे, तो फिर अल्टीमेटली मैं झूमूंगा, कभी इधर होऊंगा। तो इस पे ज़रा करना है। और दूसरा बस ये, अब बहुत खूबसूरत है, अगर थोड़ी सी मुस्कुराहट इस खूबसूरती पे आ जाए तो फिर 4 चांद लग जाएंगे। माशाल्लाह, खुश रहो, लव यू, आ जाओ, तालियां। एक चीज़ मैं बता दूं, मैं बड़ा थोड़ा सा परहैप्स आई एम गेटिंग अ लिटिल बिट ओवर एक्साइटेड। सो फार जो हमारी प्रेजेंटेशंस हुई हैं बहुत अच्छी हुई हैं, बिकॉज इफ़ वी कंपेयर आवर प्रेजेंटेशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वन, एज वी, अभी 2 रहती हैं ना, हाँ अभी 2 भी और हैं, तो लेकिन सो फार अभी तक हमारी बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। आई एम सो हैप्पी, राइट। और जो थोड़ा सा अभी भी फील कर रहे हैं, तो उनको चाहिए थोड़ी प्रैक्टिस करें और बहादुर बने। नो इशू, सब कर सकते हैं, राइट। Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम। My name is Sir and today's topic is collaboration. So what is collaboration? Collaboration का मतलब होता है कि सब लोग मिलकर काम करें, अपने आइडियाज़, अपने एफर्ट्स शेयर करें ताकि सब कॉमन गोल्स को अचीव कर सकें। मीन्स कि मैं अपनी मिसाल देती हूँ, आई एम मेहंदी आर्टिस्ट। तो रिसेंटली मेरे पास एक मैसेज आता है, उनके काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स थे कि आप हमारे साथ कोलैब करें, तो उसका फ़ायदा मुझे भी होगा, मेरे पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, मे बी मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए, मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाए। शेयरिंग आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन एफर्ट्स, ये तब होता है कि जब टीम के लोग अपने ये तो पॉसिबल होता है कि जब टीम के लोग मिलकर अपनी स्किल्स यूज़ करें और सॉरी, शाबाश, कुछ नहीं। ये तो पॉसिबल होता है कि जब टीम के लोग अपनी स्किल्स यूज़ करें और मिलकर काम करें। मीन्स सॉरी, इट्स ओके।
करें करें, कोशिश करें, उर्दू में आ जाए, अंग्रेज़ी में आ जाए, जैसे भी है, रिकॉल करें, आप कंफर्टेबल हैं। जब सब लोग अपना पार्ट होनेस्टली परफॉर्म करेंगे तो उसके रिजल्ट भी फिर उतने ही अमेजिंग मिलते हैं। कॉमन गोल्स, जब कोलैबोरेशन तभी बेस्ट कोलैबोरेशन तभी पॉसिबल होती है कि जब सबका गोल सेम होता है और जब सब शाबाश। कोलैबोरेशन तभी पॉसिबल होती है कि जब सबका गोल सेम होता है, सब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, और फिर अगर कोई भी काम मुश्किल होता है तो सब उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। एंड टीम वर्क प्लस ट्रस्ट इज़ इक्वल सक्सेस। अगर हम टीम में काम कर रहे हैं उसके लिए अगर हम एक बेस्ट कोलैबोरेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि ट्रस्ट और टीम वर्क दोनों। अगर हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे और 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 स्पिरिट के साथ काम करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगले स्लाइड पे जाइए, नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाए। वाई कोलैबोरेशन इम्पोर्टेंट फॉर अस, लर्न फ्रॉम अदर्स। अगर हम मिलके काम करते हैं तो हम दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मीन्स के हर किसी के पास एक्सपीरियंस चेंज होते डिफरेंट होते हैं, हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, तो हमें हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम उनसे न्यू आइडियाज़ और स्किल्स ले सकते हैं। बिल्ड टीम वर्क स्किल्स। कोलैबोरेशन के लिए ज़रूरी है कि अगर हम टीम वर्क में काम करते हैं तो अगर हम टीम वर्क में काम करते हैं तो उससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होती है, और अगर हम टीम में काम करें तो उससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती, डेवलप करते हैं हम। अचीव मोर टुगेदर। अगर हम मिलके काम करते हैं तो हम उस शाबाश, आप कर सकते हो, लिखा हुआ है, अब बस इसको थोड़ा सा अपने अल्फाज में बता दीजिए। अगर हम मिलके काम कर रहे हैं तो हम अपने गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं, मिलके काम कर सकते हैं, और उसको जो लिखा हुआ है ना उसी की आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, उर्दू में कर दें। अचीव मोर टुगेदर, इकट्ठे मिलके काम करें तो हम ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, बस इतनी सी बात है। हाउ टू डेवलप कोलैबोरेशन, एक्टिव लिसनिंग। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरों की बात को ध्यान से सुनें, उनको समझें, उनके आइडियाज़ को गौर से सुनें। फॉर एग्जांपल कि अगर हम ग्रुप में काम कर रहे हैं, ग्रुप मीटिंग हो रही है, तो अगर कोई अपना आइडिया दे रहा है तो हम उसके उनके आइडियाज़ को पहले गौर से सुनेंगे, समझेंगे, और फिर हम उस पर काम करेंगे। रिस्पेक्ट आइडियाज़। हर किसी का अगर कोई भी आपको आइडिया दे रहा है तो वो उसका इम्पोर्टेंट होता है। किसी की भी अगर कोई आइडिया दे रहा है तो उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई एक बंदा है, वो अगर आपको सॉल्यूशन दे रहा है तो उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको समझना चाहिए। जॉइंट टीम एक्टिविटीज़, ग्रुप एक्टिविटीज़ जैसे कि क्लास में डिबेट्स, क्लास गेम्स और ग्रुप प्रेजेंटेशंस, उनको ज्वाइन करना चाहिए। इससे हमारा कम्युनिकेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। थैंक यू सो मच। हो गया? नो इशू, परेशान नहीं होना। ओके, अच्छा
मुझे सिर्फ एक बात, सीरत यहाँ हो ना, पहली बात तो ये है कि आपने, पता नहीं मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, राइट फ्रॉम द डे वन मैं फील कर रहा हूँ कि जैसे आपने हार मानी हुई है। हार मानना पता क्या होता है? एक होता है ना एटीट्यूड, एक होता है कैन डू एटीट्यूड, और एक होता है कांट डू एटीट्यूड। तो हमने अपने साथ सवार, एक होता है कि यस कैन, मैं कर सकती हूँ, और एक पहले से सवार हो जाता है दिमाग में, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं कहाँ आ गई, ये क्या है, ये तो नहीं मैंने सोचा था, तो ये तो मैं नहीं कर सकूँगी, ये मैं नहीं कर सकती, राइट? नो सर, मैं ना घर में मैंने पूरी प्रैक्टिस की, मैंने अच्छा? अपने फ्रेंड को कॉल की, मैंने उसको सारा सुनाया, अच्छा? मैंने सारा किया, लेकिन पता नहीं यहाँ पे आके नहीं, यहाँ मुझसे तो सब अपने हैं ना, अब तो मिलने मिलाने के बाद तो हम सब एक दूसरे को देख रहे मुझे हैं। मुझे सब याद होता है, लेकिन हाँ। मुझसे भूला नहीं जाता। चलिए, इसका मतलब है कि थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जी बस मुझे आपसे यही कहना है कि आप प्रैक्टिस 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 करें, आईने में प्रैक्टिस करें, आप रिकॉर्ड करके, क्योंकि आपका जो फेस इज़ ओके, इतना वो इशू नहीं है, हैंड्स की भी आप बड़ा अच्छा वो कर रहे थे, देखें अभी भी आपने ऐसे रखा हुआ है। आप सिर्फ अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कीजिए प्लीज़, आपके पास मोबाइल फ़ोन है उस पर रिकॉर्ड कीजिए। एक और आपको मैं बता दे सकता हूँ गाइड, कि आप अपनी जो भी अल्फाज है ना, जो आपकी हर बुलेट पॉइंट पे आ रहे हैं, एक बुलेट पॉइंट है ना, उसकी एक्सप्लेनेशन 2-2 3-3 लाइनों में काफ़ी है, वो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। अगर आप चाहें तो उसको उर्दू में नोट कर लें, इंग्लिश में नोट कर लें, राइट? और उसको फिर बेशक रट्टा लगा लें, राइट? या उसकी प्रैक्टिस करें आप। तो इससे ये होता है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन की, जिसको हम कमेंट्री कहते हैं ना, जो आपने एक्सप्लेन करना है या मुझे क्या कहना है क्या, तो वो पहले से सोच के लिख लीजिए, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए, सुनिए, उसमें जो बेहतरी की आपको गुंजाइश लगती है उसको प्लीज़ इम्प्रूव कीजिए, राइट? Yes. और फिर दोबारा सुनिए, फिर अपने आप नोट्स लेते जाइए, मुझे यहाँ पर नहीं ये करिए, ये ऐसे होना चाहिए, यहाँ मुझे देखे पॉज आ गया, यहाँ मैं रुक गई, अब नहीं रुकना, कहाँ रुक रही हूँ, यहाँ पे रुक रही हूँ, इस पॉइंट पे क्यों रुक रही हूँ, ये मुझे यहाँ क्या कहना है, तो वो लिख लें प्लीज़ आप। अभी 2 हमारे पास और हैं, जी सर। राइट? बट सिंस यू कैन डू, पहली बात है कि अगर दिलो दिमाग में ये बैठा हुआ है कि नहीं मैं नहीं कर सकती, तो इसको निकाल दीजिए, क्योंकि जान छूटने वाली नहीं है, यहाँ तो करना है, राइट? और आप कर सकते हो, और प्लीज़ प्रैक्टिस करें, और बेशक उसको लिख कर याद कर लें या लिख कर प्रैक्टिस कर लें, लिखा हुआ है सामने साथ प्रैक्टिस, ताकि आपका फ़्लो बन जाए, ठीक है? बिकॉज मैं शुरू से देख रहा हूँ कि तीसरा आपका सेशन है, लेकिन मज़ा उस तरह से नहीं आ रहा है जिस तरह बाकी लोग इम्प्रूव कर रहे हैं ना, आप नहीं कर रहे हो। तो अगर माइंड में ये चीज़ है कि शायद मैं ना कर पाऊँ, तो इसको आप निकाल दीजिए। आप कर सकते, आप मैं कर सकते हैं। खुश रहो, मैं कर सकती हूँ, सिंपल, और आप कर दो, इंशाल्लाह यू विल डू वन डे, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम मज़ा आ जाए, अच्छा लगे सबको, अच्छा फीडबैक है। चलो शाबाश, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज़। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। I'm Mohammad Mahad Javed. Today the topic of my presentation is collaboration. तो जिस तरह पहले सर आपको बता चुके हैं और बाकी प्रेजेंटर्स ने भी आप सबको बताया है कि कोलैबोरेशन और टीम वर्क 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो यही है कि कोलैबोरेशन और टीम वर्क एक ही चीज़ है, इसको मैं आगे आपको बताऊँगा। सो द पावर ऑफ कोलैबोरेशन, अचीविंग मोर टुगेदर। तो अच्छी बात यह है कि मैंने पूरी डेफिनेशन इस दफ़ा लिख दी है ताकि मैं बता सकूं कि टीम वर्क और कोलैबोरेशन में क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है, ये एक ही चीज़ है कि नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपनी शेयर्ड स्किल्स, अपनी यूनिक एक्सपर्टीज़ को एक पेज पे लेके आते हैं, एक पेज पर लेके आते हैं और उसके साथ एक कुछ अच्छी चीज़ अचीव करते हैं। जो हमारे पास कोलैबोरेशन है या हमारे पास टीम वर्क है, इसका सिर्फ मकसद ही ये है कि हमने एक चीज़ को अचीव करना है। कभी भी हमारा ये नहीं है कि हमने कुछ लूज़ करना है। जिस तरह के हमारे पास फिक्शन है, हम मूवीज़ में देखते हैं, ग्रुप ऑफ थीव्स होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, कोई कार ड्राइवर होता है, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है, कोई लॉक ब्रेक कर सकता है, कोई प्रिजन, कोई हैक कर सकता है कैमरास को। तो ये सारे इकट्ठे होते हैं, ये टीम बनते हैं। टीम वर्क, कोलैबोरेशन यानी कि एक ही चीज़ है, वो टीम अप करते हैं और एक कुछ अचीव करते हैं। नेगेटिव सेंस में अचीव कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ अचीव कर रहे हैं, अच्छा अचीव कर रहे हैं। उसके बाद है कि इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। जिस तरह के हम किसी कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे अगर कोलैबोरेशन होगी लोगों में तो वो एक चीज़ अचीव कर सकेंगे, उनके अंदर एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ेगी। उसके बाद एग्जांपल्स पे आते हैं। तो जिस तरह के हमारे पास आता है कि हम डेली लाइफ में काफ़ी सारे सॉन्ग सुनते हैं,
तो वो किसी एक बंदे की तो एक बंदा तो वो सॉन्ग नहीं हमें दे सकता ना, सॉन्ग आता है, म्यूजिशियन होता है, एक बंदा गाता है, कुछ एडिट करता है, कोई ड्रम स्टिक्स बजाता है, कोई कुछ करता है। इस सब के बाद एक 4 मिनट का सॉन्ग आता है जिसको हम सुनते हैं और वो इतना इफेक्टिव होता है कि हमारा एक मूड चेंज हो जाता है। अगर सैड सॉन्ग है तो हम उससे दुखी हो जाते हैं, चाहे हमारा ब्रेकअप हुआ नहीं हुआ, लेकिन हम एक सैड सॉन्ग सुन रहे हैं तो हम उसी कैफियत में चले जाते हैं कि हम जिस तरह के अभी किसी ब्रेकअप से या किसी लड़ाई से वापस आ रहे हैं, हम किसी ट्रैवल पे जा रहे हैं तो हम एक अच्छा सॉन्ग लगाते हैं, हमारा मूड ख़राब भी है, हमारी लड़ाई भी हुई है, हम ट्रैवल पे जा रहे हैं तो हमारा मूड उससे अच्छा हो जाता है। तो ये कोलैबोरेशन है, एक टीम वर्क है, जिससे हमें एक एंड प्रोडक्ट मिल रही है जो हमें एक बेटर एंड की तरफ लेके जा रही है। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स प्लानिंग अ ट्रिप, जिस तरह के काफ़ी दोस्त होते हैं वो कहते हैं यार हम कहीं चलते हैं, कोई लड़का ड्राइव कर रहा है, कोई पिक्चर्स बना रहा है, कोई नेविगेट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये सारे टीम वर्क कर रहे हैं। ये अचीव क्या कर रहे हैं? मेमोरीज अचीव कर रहे हैं, यानी कि कोई एक चीज़ अचीव कर रहे हैं ये। उसके बाद है कि पेरेंट्स एंड फैमिली, जिस तरह के पेरेंट्स एंड फैमिली, एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो उसकी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, तो ये टीम वर्क ही है। कोई यानी कि एक टाइम पे उसका फादर अवेलेबल नहीं है, उसकी मदर अवेलेबल नहीं है, तो ये एक टीम वर्क है। कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क ये एक साथ साथ ही हैं। अगर हम इनको कंफ्यूज करना चाहें तो हम ग्रामर्स में वास्ट जाके ग्रामर के अंदर और अल्फाज को डाल के हम कह सकते हैं कि नहीं, टीम वर्क और है, कोलैबोरेशन और है। सो इसकी इंपॉर्टेंस है कि इसके अंदर हमारी इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, मेरे पास एक आइडिया है, मैं आपको दूंगा, आपके पास एक आइडिया आप मुझे देंगे, तो इससे हमारी जो क्रिएटिविटी है वो इन्हेंस होगी। इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, मैंने अपने नीचे एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उनसे नेविगेट करता हूँ, मैं उनसे कम्युनिकेट करता हूँ और उनसे कोई चीज़, कोई एक एंड अचीव करवाने के लिए उनके साथ काम करता हूँ। तो ये एक टीम वर्क है, कोलैबोरेशन है और इसके साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी लर्निंग होती है, हमारे डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद है कि न्यू बिज़नेस आइडियाज़, मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपने दोस्त को बताता हूँ यार मेरे पास ये स्टार्टअप का आइडिया है, क्या करना चाहिए, तो वो हमें बताता है कि यार अगर हम इसके अंदर इसको हम ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर ले जाएं, हम इसको ये कर लें और इस तरह के आइडियाज़ हमें दे, तो इससे हम इसके अंदर यानी कि जो हमारा होता है न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं और हम ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं। हमारे पास चैलेंजेस हैं इसके अंदर, यानी कि हम क्यों इस साइड पे नहीं जाते, जिस तरह के हम क्यों कोलैबोरेशन की तरफ, क्यों टीम वर्क की तरफ नहीं जाते, क्यों कहते हैं कि सिर्फ मैं हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते। मैं किसी से बात करूँगा, मुझे वो अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि इसके अंदर पोटेंशियल है तो मैं इससे बात कर पाऊँगा, मैं इसके साथ आगे बढ़ पाऊँगा। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मैं किसी को जानूँ, मैं किसी से बात कर सकूँ, मैं किसी से जा रहा हूँ कि मुझे पता लग जाए कि यार ये बंदा है, इससे मैं बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर क्या ऐसा है जो मुझे फ़ायदा देगा, जो मेरे अंदर है ये इसको फ़ायदा देगा। अनक्लियर रोल्स, यानी कि हमारी कोई टीम है, हमारी किसी टीम के अंदर है, हम किसी कोलैबोरेशन, किसी एक मीटिंग के अंदर हैं, किसी भी चीज़ के अंदर हैं और हमें पता नहीं है कि हम यहाँ करने क्या आए हैं, हमारा रोल क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो ये हम एक बहुत बड़ा चैलेंज है कोलैबोरेशन के अंदर। उसके बाद वर्किंग स्टाइल एंड पर्सनैलिटीज़, कॉन्फ्लिक्ट वर्क एंड स्टाइल, जिस तरह के हमें पता लगता है कि मैं ये काम इस तरह कर सकता हूँ, ये काम ये किसी और तरह कर सकता है, अगर हम अपनी ईगो को साइड पर रख दें और उसी काम को एक मिडवे तरीके से निकाल के करें तो हम कोई भी काम है वो ज़्यादा अच्छी तरह अचीव कर सकते हैं। सो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जिस तरह सर यहाँ पे बैठे हैं और हम यहाँ पे हैं, जिस तरह ये कैमरामैन यहाँ पे हैं, वो मैम यहाँ बैठी हैं, सारे कोलैबोरेट कर रहे हैं और हम एक बेटर एंड की तरफ जा रहे हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। भैया गुस्से में पड़ गया जी। हाँ जल्दी में भी देखो, उनको भी फीडबैक देना आगे। थैंक यू जी। ये देख, ये क्या लिखा हुआ है? काफ़ी कम कीजिए सर। मैंने भी लिखा हुआ है जी। चलिए नहीं हो, पहले हम स्ट्रेस से शुरू करते हैं, देखिए अच्छी अच्छी बातें प्लीज़। इम्प्रूवमेंट थी आज, इसकी फ्लोर वर्क अच्छी थी। He did last 2 times मैंने की। सही है, बिल्कुल सही है, माशाल्लाह। हैंड जेस्चर्स भी बहुत अच्छे। ठीक है, देखिए मैंने भी लिखा हुआ है, हैंड जेस्चर भी बहुत अच्छे थे। और चीज़ इसके अलावा जी, कॉन्फिडेंट भी थे, मैंने भी लिखा हुआ है। स्लाइड कंटेंट भी अच्छा था, कॉन्फिडेंट भी थे, स्टार्ट बहुत अच्छा था। और इसके अलावा स्ट्रेंथ, सॉरी फ्लो और वॉइस पिच अच्छी थी। ओके, इनकी स्लाइड्स का जो एक पर्सपेक्टिव था वो बिल्कुल डिफरेंट था। हाँ, हम लोगों ने भी स्लाइड्स दी हैं, हम लोगों ने बात की है, लेकिन हम लोगों ने एक पर्सपेक्टिव पे की है। जी, इनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट था उससे। ठीक है, मतलब कंक्लूजन वाज वेरी करेक्ट। जी जी, लेकिन एक डिफरेंट एंगल से बात एक्सप्लेन। सही है, सो दैट वाज अ गुड थिंग। सही है, बिल्कुल।
वेरी गुड। और एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट मैं बाद में बात करता हूँ इसके ऊपर भी। एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट जी प्लीज़। हाँ सर वो एक टांग पे खड़े जाते हैं और एक टांग के ऊपर टांग पे वज़न के ऊपर। आज इनको पता चल गया होगा क्योंकि हमने तैयब साहब के लिए भी बात की थी। ये है बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट, कि ये ग्रेजुअली देखें ना, ये हमें हो सकता है पहले किसी ने इसकी इम्पोर्टेंस ही ना बताई हो, हमें अवेयरनेस ही ना हो। जब अवेयरनेस आ जाए तो फिर डेफिनेटली हम उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट के लिए हमें काम करना चाहिए। तो अभी स्टिल वी नीड टू इम्प्रूव। ठीक है जी। और अब इधर क्या देख रहे हैं नकल ये मेरे लिए है। और कोई इनकी एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट प्लीज़। सर और एक चीज हालांकि इन्होंने एग्जांपल बहुत अच्छी दी है। हाँ जैसे कि प्रिजनर्स की वो दी है। हाँ। दैट्स सम प्रिजनर्स की नहीं, रॉबरी की डाकाजनी अच्छा तो उसके साथ साथ अगर थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो अच्छा लगता है। अच्छा, डाकाजनी के ऊपर चले, एग्जांपल्स बहुत अच्छी थी। 2 एग्जांपल्स उन्होंने दी, एक वो डाकाजनी की भी दी और एक यहाँ हमारे अपने भी दी कि सब मिलजुल कर हमारे कॉलीग हैं वो कर रहे हैं सब कुछ। सादिया भी पार्ट ऑफ द टीम या कोलैबोरेट कर रही हैं, जो भी है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। सब मिलजुल कर एक अल्टीमेट एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। क्या कि हम यहाँ से इन 5 स्किल्स के ऊपर कमांड हासिल करें। पहली चीज़, दीज आर द मोस्ट वांटेड सॉफ्ट स्किल्स ऑफ 21st सेंचुरी। हर जगह पर इनकी बात होती है। और उसके साथ साथ हमें कॉन्फिडेंस आए और हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेटर बन जाएं इसके अलावा। अच्छा जी, मुझे मैंने कितनी दफ़ा आपसे इशारा किया? 3 दफ़ा किया, पर फिर भी तुम बाज नहीं आए। वो पता नहीं, चले आपका बहुत शुक्रिया कि मैं आपको बहुत अच्छा लगता हूँ। आपकी मेरे चेहरे से नज़रें नहीं हटती, ये मुझे देखी जा रहा है और मैं कह रहा हूँ इधर उधर भी देखो, इधर उधर भी देखो। ठीक है, तो ये प्लीज़ आप इसका एक इंश्योर कर देना है हमने कि जब हम खड़े हों तो एटलीस्ट ये सिर्फ इधर या उधर देखने की बात नहीं होती। ये बेसिकली फॉर सम मोमेंट, चंद लम्हों के लिए। अब देखें, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ और आप सबसे बात कर रहा हूँ तो यकीनन आपको फील होगा कि मैं चंद लम्हों के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, सबकी आंखों में थोड़ी थोड़ी देर के लिए ज़रूर झांकता हूँ। क्यों? इसका फ़ायदा क्या है? कोई लॉजिक होनी चाहिए जी। मीन्स के यू आर नॉट फीलिंग इग्नोर्ड, यू आर ऑल इम्पॉर्टेंट टू मी। इवन सादिया हैं, हमारे दोस्त सब हैं, बट ये ज़रूरी है। तो एक आई कांटेक्ट ये होता है, ये आई वो ऐसे किया और उसके बाद ऐसे किया नहीं। हम मेरी टर्मिनोलॉजी में इसको कहेंगे, अगर ज़्यादा लोग नहीं हैं, ज़्यादा लोग हैं तो फिर तो नहीं हो सकता, आई टू आई कॉन्टैक्ट। क्या? आई टू आई कॉन्टैक्ट चंद लम्हे के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं प्लीज़। ओके, तो ये ज़रूरी है, राइट जी। और एक स्पीड की बात थी, अभी भी आप बहुत तेज़ी में हैं, स्लो आराम आराम से चलिए, एक एक वर्ड क्लैरिटी के साथ आप कीजिए। ठीक है, बाकी कमिंग टू योर पॉइंट रिलेटेड टू टीम वर्क एंड रिलेटेड टू द कोलैबोरेशन, बड़ा फाइन लाइन इसका डिफरेंस है। हम ये नहीं कह सकते कि ये एक ही चीज़ है, ये अंडरस्टैंडिंग इसकी ज़रूरी है, राइट। सच एज़ कि जिस तरह आप में से ही कई एग्जांपल दी किसी ने, और आपने भी एक एग्जांपल दी कि कोई एक शख्स, सपोज़ मैं एक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मालिक हूँ, राइट, मैं इंजन भी बना लेता हूँ, मैं उसकी सारी बॉडी भी बना लेता हूँ, लेकिन मेरे पास इशू है जो उसकी कुछ एसेसरीज़ हैं वो मैं नहीं बना पाता। और एक ऐसी कंपनी है जो उसकी एसेसरीज़ बनाती है, वो मोटर बाइक नहीं बनाती, राइट। तो हम क्या करते हैं, आपस में एक MOU साइन कर लेते हैं और हम कोलैबोरेट करते हैं, वो भी विनर, मैं भी विनर, सही। तो ये कोलैबोरेशन है, बिगर एंड पेयर। ऐसा ही है ना अल्टीमेटली। जो टीम है बेसिकली वो द ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फर्स्ट किया क्रिकेट टीम है, एक डिपार्टमेंट है मेरा, किसी कंपनी में काम करता हूँ और मैं एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 6-7 लोग हैं हम। तो हमारा अल्टीमेट गोल एक है, एक हमारा ब्रांड है, उसको इस्टेब्लिश करना है, तो हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं। सेल्स के लोग हैं, हमारी 6 लोगों की टीम है, हमारा टारगेट अचीव करना है सेल्स का, तो हम मिलजुल के करेंगे। ठीक है, तो वो कॉमन गोल एक टारगेट है, बट मिल के करना है, राइट जी। कोई थोड़ा कोई ज़्यादा, जिस जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो, तो दिस इज़ ए टीम। कोलैबोरेशन का मतलब है कि एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन से, प्रोक्योरमेंट से या किसी और डिपार्टमेंट से कोलैबोरेट करता है, राइट। फ़र्ज़ किया कि सेल्स का टारगेट है मुझे 100 पीस बेचने हैं, राइट। मार्केटिंग को बताएगा जी 100 पीस बेचने हैं, मार्केटिंग प्रोडक्शन को बताएगी कि मुझे 100 पीस तैयार करके दो,
वो कहेगी मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है, वो प्रोक्योरमेंट को बताएगा परचेज, भाई रॉ मटेरियल लाओगे तो मैं 100 बनाऊंगा। तो अब ये क्या होगा कि ये आपस में मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो थोड़ा सा एक्सटर्नल वे में जब जाते हैं तो ये फ़र्क है। अगर एक ही टीम है जो चले जा रही हैं और एक साथी हैं, ओढ़ना बिछोना सबका एक है और एक साथ हैं, यस दैट इज़ देयर। बट मुझे खुशी है, अच्छा यार रुको जाना की हो गया, हड्डी काली गिरी है। मुझे खुशी है कि वी आर इम्प्रूविंग, एटलीस्ट हम अच्छा जा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पे हम थोड़ा सा तवज्जो करें प्लीज़। आज भी एक तो ये थोड़ा हमारा बैलेंस है इसके ऊपर, और आई कांटेक्ट पे कीजिएगा, और जो आपका फ्लो है ना, स्पीड बोलने की, टाइम बहुत है। आज किसी को हैंड्स अप वो नहीं किया गया, स्टॉप नहीं किया गया, मीन्स कि हमारे पास टाइम अवेलेबल है बट हम उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से कीजिए ना कि कम से कम 5-6 मिनट तो हम लगाएं। सही है, चलेगा, शाबाश, थैंक यू, ओके जी। आइए जी, आप 2 ही रह गए हैं बस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ऑन द टॉपिक कोलैबोरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोलैबोरेशन को डिफाइन करने से पहले मैं आप लोग को ये मैंने लिखा है यूनिटी प्लस टीम वर्क इज़ इक्वल टू सक्सेस, इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जब हम कोलैबोरेट करते हैं किसी के साथ, अगर हम यूनिटी होगी, हम यूनिटी के साथ काम करेंगे, हमारा टीम वर्क होगा, तो हम सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। अगर हमारे में यूनिटी नहीं है, टीम वर्क नहीं है, तो सक्सेस की तरफ जाना मुश्किल है। उसके बाद हम बताते हैं व्हाट इज़ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन इज़ समथिंग कि आप एक टीम में काम करें, ग्रुप में काम करें, फॉर अ सेम पर्पस, फॉर सेम गोल आप काम करें, वो हमारे पास है कोलैबोरेशन। आप अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, उनको अपने आइडियाज़ को दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, ये हमारे पास कोलैबोरेशन होती है। लाइक हम कोई भी हमारे आइडियाज़ हैं, हमने अपने मेंबर को, टीम मेंबर को बताया है कि मेरा ये आइडिया, आपका ये आइडिया, हम मिलकर उसके ऊपर काम करें, तो ये हमारे पास क्या है, कोलैबोरेशन। देन हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास टीम वर्क और उसके कम्युनिकेशन। कोलैबोरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे पास कम्युनिकेशन है। कोलैबोरेशन में कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोलैबोरेट हम किसी के साथ कर रहे हैं और हमारा कम्युनिकेशन गैप है, तो फिर हम अपनी बात को अच्छे तरीके से कन्वे नहीं कर सकते। इसलिए सबसे बेसिक चीज़ जो है कोलैबोरेट करते वक्त वो यही है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप अपनी बात को अच्छे तरीके से कन्वे कर सकते हैं। उसके बाद टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। आप टीम वर्क करें, सबके साथ मिलकर काम करें, तो ही एक अच्छा हम कोलैबोरेट कर सकते हैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। देन हम बात कर लेते हैं बिल्ड ट्रस्ट एंड यूनिटी। लेट्स सपोज, जैसे बाकी कोलीग्स ने भी बात की कि हम किसी वजह से अपना काम करके हम चले गए हैं, नहीं हम बाकी काम कर सके, हमारे पीछे से किसी ने काम संभाल लिया, तो वो एक यूनिटी आपके अंदर होनी चाहिए, आपका ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए कि किसी ने आपका काम संभाल लिया, आपके अंदर, आपके और आपकी टीम मेंबर में ये ट्रस्ट और यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है, तो ही हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। देन हम बात कर लेते हैं कि वाई कोलैबोरेशन मैटर्स फॉर मी एंड फॉर अस। कंबाइन टैलेंट्स एंड स्किल। जब हम कोलैबोरेट करते हैं तो बहुत से टैलेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, उसके बाद हम बहुत से स्किल्स को देखते हैं। लेट्स सपोज हम 2 लोगों ने या हमारी टीम ने कोलैबोरेट किया, मेरा कोई आइडिया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों का आइडिया आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किया। जब हमने आइडियाज़ एक दूसरे के शेयर किए हैं तो ही हमें पता चला कि हम ये काम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं बेहतर, मेरी अगर कोई मिस्टेक है तो आप लोग बता सकते हैं कि नहीं इस चीज़ को ज़्यादा इंप्रूव करना चाहिए, और मुझे अगर आपका आइडिया लग रहा है कि नहीं इस चीज़ को इस तरह इंप्रूव करना चाहिए, तो बात करने से और आपस में आइडियाज़ शेयर करने से ही हम उस बात का हल निकाल सकते हैं। देन क्रिएटिव सोल्यूशन। वही बात पहली वाली कि अगर हम अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे, दूसरे का आइडियाज़ को सुनेंगे, तो ही हम क्रिएटिव काम कर सकते हैं। अगर हम किसी को सुनेंगे नहीं और जस्ट अपनी करेंगे कि जो मैं कह रही हूँ या जो दूसरा बंदा कहेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वही बस ठीक है, तो इस तरह ना हम कोलैबोरेट कर सकते हैं और ना ही हम सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। देन है फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हम फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग यही है कि हम लोगों ने आपस में काम किया, बातचीत किया है, हमने प्रॉब्लम देखी है, उसके ऊपर हम जब काम करें, कोलैबोरेट करें, तो दूसरा के आइडियाज़ को सुने, वो हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है दूसरे में बताएं, तो उसी तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। जब हम एक टीम में कोलैबोरेट करके काम कर रहे होते हैं तो ये हमारे रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। इसके अलावा हमारे पास है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। कोलैबोरेट करते वक्त जब हमारे अंदर रिलेशनशिप हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इसी से ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी भी आती ही आती है हमारे काम के अंदर। देन हम बात कर लेते हैं हाउ टू डेवलप कोलैबोरेशन स्किल्स। सबसे पहले हम बहुत गौर से सबको सुने, सबके आइडियाज़ को सुने कि वो क्या बता रहे हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं उनको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करें, क्लियरली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, तो ही हम बता सकते हैं कि हमारा क्या विजन है और उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है।
देन रिस्पेक्ट अदर ओपिनियन, जो कोई अपना आइडिया बता रहा है उसको बिल्कुल निगलेक्ट ना करें और ना ये शो करें कि मतलब उसके तो राय की कोई वैल्यू ही नहीं है, जो आप बता रहे हैं बस वही ठीक है। दूसरे की बात को सुनने गौर से, उसको रिस्पेक्ट करें उसकी राय को, तभी हम टीम वर्क में एक अच्छा काम कर सकते हैं। देन हमारे पास है डिवाइड टास्क फेयरली। जो काम हमने आपस में सारा डिसाइड किया है, ये नहीं है कि एक ही बंदे के ऊपर सारा काम डाल दिया जाए, काम को इक्वली डिवाइड किया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी सारी एफर्ट्स को शेयर किया जाए, तो ही हम हर किसी का अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है। देन जो हमने गोल शेयर किया है, जो हमने टास्क बनाया था कि हमने ये अचीव करना है, जब हम उसे अचीव कर लें तो उसके बाद हमारा जो हम सेलिब्रेट करें, हम अपने अचीव को सब लोगों के साथ उसको जो हमने गोल अचीव किया उसको सेलिब्रेट करें, ना कि बस हमने अचीव कर लिया दैट्स ओके फाइन बस ठीक है। आप अपनी गोल्स को अचीव किया, आप उसको सेलिब्रेट करें लोगों के साथ, तो ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद अगर हम इसको कंक्लूड करें तो कोलैबोरेशन सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है हमारे पास। कोलैबोरेशन एक स्किल है जो हम सबको आपस में कनेक्ट करके रखती है। कोलैबोरेट करने वक्त आपने अगर किसी के साथ कोलैबोरेट किया तो आप आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, आप दूसरों के आइडियाज़ को सुन रहे हैं, आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे लास्टली मैं इसको कंक्लूड करते वक्त ये कहूँगी, हेलन केलर ने जिसे कहा था कि अलोन वी कैन डू सो लिटल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। दैट इज़ फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। एक मिनट रुक जाइए, ये लगाए रखें। ये स्लाइड पे हैं वापस उससे, हाँ स्लाइड इसको बैक करें, एक मिनट ठीक है, एक एक करते जाएं। बस 2 पॉइंट रह गए ना मेरी फरमाइश पे। ये 2 पॉइंट्स जो है ना, इनको ज़रा आराम से एक्सप्लेन करें बस हमारी खातिर। कोई जल्दी नहीं है, कोई हरी भरी नहीं है, ठीक है? कीजिए, ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए, और ऐसा ना लगे कि आप, ऐसा लगे जैसे आप हमें सिखा रहे हो। जैसे सेकेंड लास्ट पॉइंट हमारे पास है डिवाइड टास्क फेयरली। आपने जो भी काम डिसाइड किया है, जो टास्क, ये तो वही टोन है, लहजा चेंज होना चाहिए जैसे हमें सिखाने वाला हो। अभी आप हमें बता रहे हो कि मैंने ये सबक याद किया है और मैं बहुत अच्छा आपको सुना रही हूँ, शाबाश। जब वॉइस इंटोनेशन या वॉइस वेरिएशन आती है पिच में भी और टोन में भी, तो फिर मैं भी तो आपसे मुखातिब हूँ ना, तो मैं भी तो बड़े ज़ोर से कह सकता हूँ, मैं भी तो आपसे मुखातिब हूँ ना, तो कुछ ना कुछ तो चेंज है ना। तो हम भी तो कोशिश करें। अब मोनोटोन एक ही उस पर जाना तो ऐसा है जैसे रट्टा सुना रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई करें, बस सबके लिए, हमारी लर्निंग के लिए, प्लीज़। शाबाश। काम जो है, हम कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं, हमने कोई काम किया है, कोलैबोरेट किया है किसी के साथ, हमने उसको सीखना है कि हमने कैसे करना है। हम कोई काम डिवाइड कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, आपने दूसरे का ओपिनियन सुना, उससे सीखने की कोशिश की कि वो क्या बताना चाह रहा है, आपने उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना, अपना भी दिया। उसके बाद आपका जो सम अप एक चीज़ निकालते हैं, आप अपना काम डिवाइड कर रहे हैं, सब कुछ आपने देख लिया, उसके बाद जो एक चीज़ आप सम अप करते हैं, तो वो कोलैबोरेशन में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। चले जी, थैंक यू वेरी मच। क्या आप लोगों ने फ़र्क महसूस किया जो मैंने इनसे एक क्यों जी फ़र्क महसूस किया? आपने कुछ फील किया? थोड़ा सा चेंज नहीं था, हमारे लिए बहुत बड़ा चेंज था, राइट? दिस इज़ द डिफरेंस। वही आरफा है, वही उनकी स्लाइड है, सिर्फ थोड़ा सा इनकी टोन और पिच में चेंज आई, ऐसा ही है ना? और सुनने वालों को टोटली डिफरेंट लगा और मेरे ख्याल में अच्छा ही लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ठीक, इट इज़ फॉर एवरीवन बाय द वे। आराम से बात कीजिए, जिस तरह आपने कंक्लूड बहुत अच्छा किया, उस कंक्लूजन पे ऐसा आप ज़रा याद करें, आपने क्या कहा था जब बंद करके ऑफ करके स्लाइड को कंक्लूड क्या किया? कोलैबोरेशन सिर्फ एक काम करने का तरीका नहीं है, कोलैबोरेशन एक स्किल है। नहीं वैसे ही फिर तेज़ हो गई हैं आप, अल्लाह जी, आराम से। हाँ, कोलैबोरेशन हमारे पास जो है वो एक काम करने का तरीका नहीं है, कोलैबोरेशन हमारे पास एक ऐसा स्किल है जो हम सबको आपस में कनेक्ट करके रखता है। हम जाते जाते मुझे 2 बातें ज़रूर कहनी है कोलैबोरेशन के बारे में। ओके, नंबर 1 इज़ कोलैबोरेशन जो है सिर्फ मिलजुल कर काम करने का नाम नहीं है, पॉजेस, बल्कि कोलैबोरेशन क्या है? आपस में कनेक्ट। आप कोलैबोरेशन की वजह से विद आपस में हम कनेक्टेड रहते हैं,
एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प आउट करते हैं बेस्ड अपॉन आवर स्ट्रेंथ्स, सो दैट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी फिनिश इट, हम साथ होते हैं। this is how it basically has to be. In conclusion, जिस तरह क्लोजिंग करनी है, हमें हर सेशन में कुछ ना कुछ ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, पहले दिन भी तो हम कर सकते थे, बट पहले खड़े होना सीखना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करना, फिर बोलना सीखना, राइट, एंड ग्रेजुअली वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो अब सब के लिए यही है कि नेक्स्ट ऑनवर्ड दो चीज़ें, चलो बेटा थैंक यू वेरी मच आरफा, दो चीज़ें हमें ज़रूर करनी है। एक तो ये अभी जो बात हम कर रहे हैं जिस पे बड़ा धीरे धीरे स्लो, कोई हरी भरी नहीं है। नेक्स्ट 2 सेशन में हमने एक प्रैक्टिस करनी है, किसकी सवाल पूछने, कोई सवाल पूछे हमसे तो उसका हमने रिप्लाई कैसे करना है। डू यू रिमेंबर? क्या क्या है वो टेक्निक है? सॉरी, हाँ पूरा पहले बताइए क्या है उसका। ट्रैक्ट, ठीक है, TRACT, सबको पता है? ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, पहला T थैंक्स कहना है, जैसे सवाल पूछा, और उसका भी बड़ा हरी भरी में नहीं कहना थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग क्वेश्चन, चलो आपका बहुत शुक्रिया आपने सवाल पूछ लिया, नहीं भाई, उनका जिस तरह शुक्रिया अदा करते हैं, हमारा टोन, हमारा लहजा भी तो वही होना चाहिए ना। आपका बहुत शुक्रिया आपने सवाल पूछा, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, ओके। सो लेट मी रिपीट योर क्वेश्चन फॉर एवरीवन। दूसरा क्या है? आर रिपीट, लेट मी रिपीट योर क्वेश्चन। तो उसी स्टाइल में बोलिए, उसके बाद क्या आता है? ए उसका फिर आंसर दे दीजिए, एज फार एज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज कंसर्न बता दीजिए, और फिर क्या आएगा? सी मीन्स चेक करें, चेक करें कि जो हमारा जवाब गया वो वाकई सवाल करने वाले का तसल्ली हो गई, सेटिस्फेक्शन हो गई, तो चेक करें डिड आई आंसर योर क्वेश्चन, आपको आपका जवाब मिल गया, आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड, इज दैट ओके फॉर यू। इसी तरह पूछिए ना, और फिर आखिर में क्या है? टी, फिर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, थैंक यू, और दैट्स ऑल, इज दैट ओके। नेक्स्ट में हम आपसे प्रैक्टिस करेंगे एक दूसरे से सवाल करने की और ट्रैक्ट को अप्लाई करने की, इज दैट ओके। आइए जी। Assalamu alaikum everyone. Walaikum assalam. My name is Mishma Ashraf and today I'm going to talk about the presentation on the topic of, today I'm going to start the presentation on the topic of collaboration. So collaboration, together we achieve more. हर किसी में, It's okay, relax, no issue. आज जिस स्किल के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सिर्फ मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी में बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें ये हमें काम आती है। हर इंसान में एक स्ट्रेंथ होती है और यही स्ट्रेंथ है जो हमें, जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम स्ट्रॉन्गर टुगेदर बनते हैं, क्योंकि हम अकेले इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने भी हम सबको भेजा है इस दुनिया में दूसरे लोगों के साथ, हम अकेले इस दुनिया में नहीं आए और ना हम अकेले इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। टीम वर्क विन, कामयाबी तभी हासिल होती है जब हम अकेले नहीं बल्कि सबके साथ मिलकर, सबके साथ कोलैब करके, उनके साथ बातचीत करके अब हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेयर्ड गोल। शेयर्ड गोल का मतलब है कि एक ही एम होना। हमारी डेस्टिनेशन जब एक होगी तो हम फोकस्ड होंगे, और जब हम फोकस्ड होंगे तो हमारे लिए एक काम करते हुए आपस में मिलकर हमारे लिए बहुत आसानी होती है। नेक्स्ट है ट्रस्ट मैटर। सबसे ज़रूरी है ट्रस्ट। जब हम ट्रस्ट करते हैं तभी हम अपनी बात अगले इंसान से ओपनली शेयर कर सकते हैं। अगर हम ट्रस्ट नहीं कर पाते तो हम अपनी बात वो नहीं कह पाते जो हम कहना चाहते हैं। जिस तरह कि कैलन ब्लेंजर ने कहा, नन ऑफ अस इज़ अ स्मार्ट एज ऑल ऑफ अस। हमारे अकेलों की इतनी सोच, अकेले इंसान की सोच महदूद होती है, लेकिन जब सब सोच मिल जाती हैं तो हमारी जो थॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है वाई इज़ कोलैबोरेशन इम्पोर्टेंट फॉर मी। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम एक दूसरे को समझते हैं।
बल्कि हम समझते भी नहीं, उनको महसूस करते हैं। और जब हम उन्हें महसूस करते हैं तो हमारे इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप होते हैं। और ये कोलैबोरेशन में बहुत ज़रूरी है कि हमारा आपस में रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो। फास्टर रिजल्ट, जब हम मिलकर काम करते हैं तो एक इंसान पे सिर्फ प्रेशर नहीं आता, बल्कि सब प्रेशर, जो काम का प्रेशर होता है, जो गोल का एम होता है, वो सब पे इक्वली डिवाइड होता है और कोई भी बर्डनाइज नहीं होता। नेक्स्ट है बिगर आइडियाज़। बिगर आइडियाज़ में कोई भी प्रॉब्लम है, जब हम सब मिल जाते हैं तो हमारे आइडियाज़ जब शेयर होते हैं तो हमें अगर अकेले इंसान को नहीं समझ आ रही, लेकिन जब हम मिल जाते हैं तो हमें बहुत से सॉल्यूशंस मिलते हैं। और जब सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो हमारी सोच जो है वो बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट है फ्यूचर रेडी। जिस भी इंसान ने अगर जब भी हमने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है तो हम अकेले, जिस तरह बताया कि कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जब हम बाहर निकलना है, अपने काम को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए अगर हम तैयार होंगे कि हमें दूसरों को बुलाना है, हमने उनसे बात करनी है, हमें उनके साथ इंगेज रहना है, तो ये हमारे लिए तब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हाउ कैन आई डेवलप कोलैबोरेशन। इसमें फ़र्स्ट लिसनिंग और स्पीकिंग है। लिसनिंग के अंदर ये है कि हम जब भी हम कोलैबोरेट करते हैं, हम कोई काम करते हैं, तो सिर्फ सुनना ही ज़रूरी नहीं होता, बल्कि अगर हम उनको ध्यान से समझ कर सुनते हैं तो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो बहुत क्लियर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे आपस में जो तफरके पड़ते हैं, जो हम कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उनसे हम बहुत हद दर्जे तक बचा जा सकता है। और अगर हम किसी की बात को अच्छे से सुनते हैं, हम रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, क्लियर वर्ड्स में बात करते हैं, तो कन्फ्यूजन से भी बहुत हद तक हम बच सकते हैं। नेक्स्ट है स्टे फ्लेक्सिबल। लाइफ में हर चीज़ एक ही फ्लो से नहीं चल रही होती है, बल्कि कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लेकिन अगर हम अडेप्ट करना चीज़ों को सीखेंगे और अडेप्ट करते हैं और हम चीज़ों के क्या कहेंगे उसे, फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअली इज़ द ब्रिज बिटवीन क्वास एंड कोलैबोरेशन। जब हम आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं तो हमें एक तो चीज़ों को अडेप्ट करना चाहिए, और जो दूसरे अगर कोई बात कह रहे हैं हमें उनको भी बर्दाश्त करना चाहिए। सेलिब्रेट ऑल, हमें अपनी छोटी से छोटी अचीवमेंट को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। बेशक कोई सिर्फ आइडिया दे रहा है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो एक आइडिया दे रहा है, ये भी हमारे लिए बहुत मैटर करता है। एक टीम में काम करते हुए वो आइडिया दे रहा है या उसने टास्क कंप्लीट किया, अगर हम उनको मोटिवेट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सबके साथ मिलकर काम करने में। बिकॉज इट्स नॉट ऑल अबाउट वी विन, इट्स अबाउट वी ऑल ग्रो। एंड इन द एंड द पॉइंट ऑफ द डे इज़ कि हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ काम करने में नहीं बल्कि ज़िंदगी में भी जब हम मिलकर साथ चलते हैं तो हमें अपनी मंजिल हमारे करीब नज़र आती है और हमारे पास हो जाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिश्रा। जी सर, फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा था, मतलब जिस तरह ये उर्दू हम यूज़ करते हैं, तो वो जो अल्फाज ये यूज़ करे दरवाज क्या इसका मतलब सुनना चाह रहे थे। ओके, दैट्स ग्रेट। जी आप, मुझे क्यों आपको बुलवाना पड़ता है, आप खुद से स्टार्ट किया करें ना। जी सर, मैंने पॉज दिया था, उसके बाद सर पूरी जो प्रेजेंटेशन थी उसमें लगा ही नहीं कि दोबारा के ये रुकी भी थी पहले। अच्छा, बहुत अच्छा फ्लो था, सही है। ओके, फ्लो बहुत अच्छा था। और पिच बहुत अच्छी, जो आवाज़ की पिच है उनकी वो बहुत ज़्यादा, एक तो टोन बहुत कम थी और जो पिच वेरिएशन थी वो बहुत अच्छी थी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी तैयब साहब। सर इनकी फ्लोर मूवमेंट अच्छी थी और जो इनका फ्लो था वो अच्छा था। फ्लो किस चीज़ का? बोलने का फ्लो, स्पीड। जी, और इसके अलावा इनकी स्ट्रेंथ? सीरत जी कॉन्फिडेंट थी। चले, स्लाइड कंटेंट अच्छा था, ज़बरदस्त। चले, हाँ शाबाश। और जो वर्ड्स इन्होंने यूज़ किए थे वो काफ़ी अच्छे, सच एज जैसे उर्दू जब बोलती हैं तो उर्दू के वर्ड इनके बहुत प्योर होते हैं, जिसमें तफरका और इस तरह से पता चल रहा होता है कि उर्दू मिसअंडरस्टैंडिंग की बड़ी अच्छी इन्होंने ट्रांसलेशन की थी, तो ना वो कहना चाह रही थी कि अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो तो उसमें ये होगा कि हमारा तफर्रका नहीं आएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी।
चलें, दैट्स गुड। इसलिए मैं पूछ रहा था कि क्या वो चीज़ थी जो मुझे भी अच्छी लगी। चले जी, एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। ये ज़्यादती करते हैं वैसे। हाँ, आप कुछ कहना चाह रही है? कह दे, कुछ नहीं कहेंगी आपको। हाँ हाँ, शाबाश। Not as such, but a little more practice can add. ओके, प्रैक्टिस तो सबको हमें चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए। Because everything right and she is confident enough. हाँ लेकिन अगर थोड़ी सी और प्रैक्टिस ऐड कर ले तो it will be way more better. जी। सर स्माइल, चेहरे पे अगर थोड़ा वो स्माइल आ जाए। फेशियल एक्सप्रेशंस आपके बहुत अच्छे थे। जो आपका आई का जो मैं हमेशा आंखों में देखता हूँ सबके, बहुत खूबसूरत था। बट मैंने उस वक्त ये लिख लिया कि अगर इसके साथ साथ ये भी कर देना, लिखा हुआ है मैंने, अभी नहीं लिखा, पहले का लिखा हुआ है, देख कर। तो ये, और जब हम कहते हैं आपकी टोन बहुत अच्छी थी, पिच बहुत अच्छी थी, तो जो पिच के साथ साथ हल्की सी जो चेहरे पे मुस्कुराहट कह लें उसे, या थोड़ा सा एक रिलैक्स पोस्चर कह लें, फेशियल रिलैक्स एक्सप्रेशन कह लें आप, तो वो उससे और अच्छा हो जाता है, राइट। बट सबसे अच्छी चीज़ है आपकी लास्ट प्रेजेंटेशन है ना, और तो कोई नहीं रह गए, आपकी तो अभी नहीं आई। while concluding all that, please बेटा बैठ जाओ, थैंक यू वेरी मच। यार सॉरी, अच्छा मैं इनसे कह रहा हूँ, अच्छा आपसे नहीं कह रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल let me appreciate all of you. It is our third practice or coaching session, but you're doing great job. Even better than the last जो हमारा बैच किया है, उनसे भी बेहतर आप कर रहे हो, क्योंकि वहाँ लास्ट सेशन तक भी काफ़ी हद तक उनको इम्प्रूवमेंट की थी। बट सो फार जिस तरह आप लोगों ने इम्प्रूव किया और दिलचस्पी से किया और बहुत अच्छे तरीके से किया, और आपने उसको बाकायदा प्रेजेंट किया एक क्लास से, अपने आप को मार्केट किया, या जिस तरह भी है शो ऑफ किया, फैंटास्टिक, फैबुलस, आई एम सो हैप्पी। सिर्फ हमारे पास अभी जो अब सिर्फ हमने कोलैबोरेट करना है या टीम वर्क करनी है, जो भी आप कह लें, सीरत के लिए। सीरत, एक आपसे गुजारिश ये है कि नेक्स्ट टाइम आपसे ही शुरू करेंगे हम, क्योंकि ऐसा हाँ होता है कि अब 2-3 अच्छी प्रेजेंटेशंस हो जाती हैं, अच्छा फीडबैक आता है, तो फिर इनर फीलिंग्स आने लग जाती हैं। आई विश आई कुड बी एबल टू डू दैट, आई विश कि मैं भी ऐसा कर सकूं, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। तो इस तरह की चीज़ें आने लग जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले हम सीरत से ही आगाज़ करेंगे, राइट जी। और मुझे पता है कि देखिएगा, आप जब फर्स्ट टाइम आएंगी तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, बहुत बेहतर होगा। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी सो हैप्पी, ऑल क्रेडिट्स गोज़ टू यू। और इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट 2 सेशंस में एक ट्रैक्ट को बीच में लेके आएंगे तो और मज़ा आएगा, सेशन और थोड़ा इंटरैक्टिव हो जाएगा। ओके, लास्टली बट नॉट द लीस्ट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ ज़रूर पूछिए, इससे पहले कि हम खुदा हाफिज़ कहें और ग्रुप फ़ोटो के लिए बाहर जाएं। डन जी, हो गया। हाँ जी, कोई सवाल आपके माइंड में आ रहा हो? अच्छा, ऐसे सवाल जब भी हो तो प्लीज़ आप सोच के आया करें, नो इशू। मुझे नहीं आता होगा ना तो मैं कह दूंगा मुझे नहीं आता, बिकॉज आई एम नॉट ए परफेक्ट पर्सन, आई एम माई सेल्फ एज ए लर्नर। मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीख रहा हूँ, बट कोई ना कोई अगर ऐसी कोई भी चीज़ आती है तो प्लीज़ डू आस्क द क्वेश्चन। और कभी अगर टाइम थोड़ा बच जाता है, सपोज 5-10 मिनट, या जल्दी आ जाते हैं हम और वेट कर होते हैं दूसरों का, कोई आपके माइंड में टॉपिक से बाहर निकल कर भी कोई सवाल आता है, ठीक है, रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर स्टडीज़, रिलेटेड टू योर एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू आस्क, तो यू मोस्ट वेलकम। यूजुअली मैं 10-15 मिनट पहले आ जाता हूँ, तो उसको हम अवेल कर सकते हैं जब वेट कर रहे होते हैं किसी का। इज़ दैट ओके? चलेगा? सही, बहुत शुक्रिया, ग्रेट, शाबाश, प्लीज़।